یہ ایک خوبصورت مشاعرہ انشاءاللہ آج عمل میں آئے گا۔ انیس احمد صاحب بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، ہم انہیں السلام مبارکباد پیش علیکم۔ کرتے ہیں۔ اہلاً وسہلاً انیس احمد صاحب، السلام اور خورشید علیکم۔ الحسن نیئر صاحب بھی موجود ہیں۔ آئیے، السلام علیکم۔ ہماری روایت رہی ہے کسی بھی مشاعرے کو، کسی بھی ادبی نشست کو شروع کرنے سے پہلے کائنات کے خالق رب العالمین اور اس کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت پاک کے لیے میں منصور احمد قاسمی صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ آپ نعت پاک سے محفل کا خوبصورت آغاز کریں۔ منصور قاسمی صاحب۔ بہت شکریہ حسن صاحب، اپنے نعت پاک کی شہادت میرے حصے میں دی ہے، تو آئیے چند اشعار۔ آپ کی دید کو جب ہم بھی سفر کرتے ہیں، آپ سبحان اللہ، کی سبحان دید کو ہم جب بھی سفر کرتے ہیں، خار بن راہ کو بھی راہ گزر کرتے ہیں، خار بن راہ کو بھی راہ گزر کرتے ہیں، آپ ہی اب نظر لطف و کرم مجھ پہ کریں، آپ ہی اب نظر لطف و کرم مجھ پہ کریں، جانے کیوں دوست میرے صرف نظر کرتے ہیں، کیا جانے کہنے بھائی، کیوں دوست سبحان میرے اللہ، سبحان اللہ، صرف نظر کرتے کیا کہنے کہنے، ہیں، واہ واہ واہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ نقش پائے شہ کونین پہ چلنے والے، نقش پائے شاہ کونین پہ چلنے والے، نقش پائے شہ کونین پہ چلنے والے، معرکہ سخت سے بھی سخت ہو سر کرتے اے ہیں، ہے اے ہے، کیا کہنے۔ معرکہ سخت سے بھی سخت ہو سر کرتے ہیں، کیا آپ کہنے بھائی۔ کا دست شفاعت ہو ہمارے سر پر، ماشاء اللہ آپ کا دست شفاعت ہو ہمارے سر پر، اور نہیں کوئی تمنا دیگر کرتے کیا ہیں، کہنے، اور کیا کہنے اور بھائی، واہ نہیں واہ۔ کوئی تمنا تمنا دیگر، دیگر کرتے ہیں، کیوں نہ وہ ناز کریں بخت پہ اپنے منصور، کیا کہنے، کیوں کیا نہ کہنے۔ وہ ناز کریں بخت پہ اپنے منصور، کوچے پاک میں جو عمر بسر کرتے کیا ہیں، کہنے، کیا کہنے، سبحان کوچے اللہ، سبحان پاک اللہ۔ میں جو عمر بسر کرتے ہیں، آپ کی دید کو ہم جب بھی سفر کرتے ہیں، خار بن راہ کو بھی راہ گزر کرتے ہیں۔ کیا کہنے منصور بھائی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے منصور بھائی۔ ماشاء اللہ جو ماشاء اللہ رحمت سبحان اللہ کونین ہو، ماشاء ممدوح خدا ہو، اللہ جزاک اللہ۔ جو رحمت کونین ہو، ممدوح خدا ہو، حق اس کی ثنا خوانی کا پھر کس سے ادا ہو۔ آپ کیا نعت پڑھ بات ہے رہے تھے، کیا مجھے بات ہے۔ بےحد میں مسرور ہو رہا تھا، اور نعت اگر سنی جائے یا کوئی اور پڑھے تو سننے والا مسرور کیوں نہ ہو۔ مجھے محسن نقوی صاحب کی ایک بڑی مشہور نعت ہے، اس کے چند شعر ہمیشہ یاد آ جاتے ہیں جب کوئی نعت پڑھتا ہے، کہ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کے تجلی کا ورق ہے، عارض ہے کہ والفجر کی آیت کے حامی ہے۔ اللہم صلی علی محمد اللہ وآل اکبر محمد۔ اللہ اکبر ماشاء آئیے، اللہ۔ اب محفل کا خوبصورت آغاز ہو چکا ہے، ہم لوگ غزل کے دور میں چلیں گے۔ غزل قدیم فن ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا کہ آنکھوں سے کہے کوئی، آنکھوں سے سنے کوئی، اس طرز تکلم کو کہتے ہیں غزل کو۔ غزل ہماری تہذیب و تمدن اور اعلیٰ کیا تصورات کی امانت دار ہے، آئینہ دار ہے اور ترجمان ہے۔
غزل کو اردو شاعری کی آبرو کہتے ہیں۔ جناب رشید احمد صدیقی صاحب نے غزل گوئی کچھ اس طرح اپنے الفاظوں میں کہا ہے کہ ادنا یا اعلیٰ شاعری کا دار و مدار اس پر ہے کہ شاعری کس سطح سے زندگی کا حق ادا کرتی ہے اور کہاں تک زندگی کی آنی اور فانی لذت و علم سے رشتہ جوڑتی رہتی، کیونکہ شاعری کوئی القاء نہیں، الہام نہیں، جنون نہیں۔ جب تک شعری صلاحیت قدرت کی طرف سے ودیت نہ کی گئی ہو، کوئی شاعر محض فن کی بنیاد پر شاہکار نہیں پیش کر سکتا۔ یعنی قدرت کی عطا ہو، قدرت کی عطا بھی ضروری ہے، فن کا سیکھنا بھی ضروری ہے، عروض بھی معلوم ہو، بلاغت بھی معلوم ہو، فن بھی معلوم ہو۔ ان سب چیزوں کو یکجا کرنے کے بعد ایک خوبصورت شاعری منظر عام پر آتی ہے۔ کسی شاعر نے کہا، غالباً ساغر انصاری کا شعر ہے، کہ احساس کے شعلوں میں پہروں کوئی جلتا ہے، تب ذہن کے پردے سے ایک شعر نکلتا ہے۔ یعنی ایک شعر کی تخلیق کے لیے شاعر کی جد و جہد، شاعر کا راتوں کا خون کرنا۔ میں نے دیکھا ہے کہ کبھی کبھی خود سے اتنا بیزار ہو جاتا ہے شاعر کہ اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی۔ میرے ایک بڑے عزیز دوست ہیں، میں ان کے بارے میں بتاؤں کہ 3 دن جاب پر نہیں گئے۔ میں نے ان سے فون کیا کہ سر آپ کہاں ہیں؟ تو کہنے لگے کہ یار میری ایک غزل طرح پہ تھی جو نہیں ہو رہی تھی، میری عزت پہ بن آئی ہے اور میں نے 3 دن جاب نہیں کی۔ میں نے کہا آپ اس دور کے غالب بننا چاہتے ہیں؟ اب آپ دیکھیے کہ شعر، یعنی جو شاعر ہے وہ آج کے دور میں بھی اگر اسے اچھے شعر کے پیچھے جدوجہد کرنی پڑ رہی ہے تو 3 دن آفس نہیں جا رہے۔ تو آئیے، اس خوبصورت مشاعرے کا آغاز ہو چکا ہے۔ میں کہاں سے شروع کروں؟ سارے جتنے بھی یہاں پر شعراء کرام موجود ہیں سب ایک سے میں بڑی معذرت چاہتا ہوں کہ اگر مجھ سے تقدیم و تاخیر میں کوئی مسئلہ ہو جائے تو براہ کرم مجھے معاف فرمائیے گا۔ شروع کریں۔ حافظ بنارسی نے کہا کہ ستارے توڑ کے گردوں سے لائے جاتے ہیں۔ جی آپ کو صاف باقی صاحب آگے شروع کریں۔ سارے اختیارات آپ کے۔ چلیے ذرا نواز۔ ستارے توڑ کے گردوں سے لائے جاتے ہیں، لہو سے نقشے تمنا بنائے جاتے ہیں، یہ بزم عشق ہے، اہل وفا کی محفل ہے، یہاں چراغ نہیں دل جلائے جاتے ہیں۔ میں سب سے پہلے اپنے ہی شہر ریاض سے ایک ایسے خوبصورت شاعر، ایک ایسے خوبصورت لب و لہجے کے شاعر کو دعوت کلام دوں گا، اور مجھے یقین ہے کہ آج کا مشاعرہ یہیں سے اپنی بلندیوں کی منزلیں طے کرے گا۔ میری مراد ہے خورشید الحسن نیّر صاحب سے کہ آپ آئیں اور اپنے کلام سے محفل کا خوبصورت آغاز کیا بات ہے، کیا بات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جناب صدر کی اجازت سے باقی صاحب آپ کی اجازت چاہ رہے ہیں صدر کی؟ جناب صدارت کس کی ہے بھائی؟ ہمارے صدر، میں نے شروع میں ہی کہا کہ ایک خوبصورت مشاعرے کا دار و مدار 3 چیزوں پر منحصر ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے ایک باوقار صدر جو ہمارے مشاعرے میں خورشید احمد علیق صاحب ہیں، اور دو معزز مہمان باقی احمد پوری صاحب جن کا تعلق لاہور پاکستان سے ہے، اور دوسرے مہمان معزز سعید روشن صاحب جن کا تعلق بھارت سے ہے۔ آپ تینوں ہمارے ساتھ ماشاءاللہ موجود ہیں۔ اب ہم آپ کی ہی رہنمائی میں اس مشاعرے کو بلندیوں تک لے کے جائیں گے۔ میری پھر سے مراد ہے خورشید الحسن نیّر صاحب سے، آپ اپنا کلام سنا۔ بہت شکریہ حسان بھائی، میں ممنون ہوں جناب ڈاکٹر افروز صاحب کا، مولانا قاسمی صاحب، جنہوں نے مجھ چیز کو بڑے مشاعرے میں شرکت کا موقع دیا۔ جناب صدر کی اجازت سے چند اشعار گوش گزار کرتا ہوں۔ کہ شروع میں کرتا ہوں اسم رب سے کہ نام سب سے بڑا یہی ہے، شروع میں کرتا ہوں اسم رب سے کہ نام سب سے بڑا یہی ہے، درود اپنے نبی پہ بھیجوں، حکم رب کا ملا یہی ہے۔ واہ، چھوٹے بہر کی غزل کی چند اشعار حاضر خدمت ہے کہ رات کی صورت کالی ہے، رات کی صورت کالی ہے، رات کی صورت کالی ہے، راحت دینے والی ہے۔ ارے واہ واہ واہ،
رات کی صورت کالی ہے، رات کی راحت دینے صورت والی ہے۔ راحت دینے والی ہے، اور موسم کی بے مہری سے موسم کی بے مہری سے مرجھائی ہریالی ہے۔ موسم کی کیا بے بات ہے، اچھا تھا، مہری سے بہت شکریہ۔ کہنے بھائی ہریالی۔ بہت میرا عرض کیا ہے کہ آنکھوں میں طوفان ہے یا آنکھوں میں طوفان ہے یا منظر کی بدحالی ہے۔ کیا کہنے بات کو بھائی، نیر میں بہت شکریہ۔ آنکھوں میں طوفان ہے یا منظر کی بدحالی ہے۔ واہ واہ، آخری کش سگریٹ کی اور آخری کش سگریٹ کی اور آخری کش سگریٹ کی اور چائے کی پیالی خالی ہے۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، چائے بہت کی شکریہ۔ پیالی خالی ہے کا جواب نہیں ہے جناب۔ آخری کش سگریٹ کی اور چائے کی پیالی پیالی خالی ہے۔ واہ نیر دل کی راہ گزر، نیر دل کی راہ گزر، نیر دل کی راہ گزر میری دیکھی بھالی ہے۔ کیا کہنے واہ واہ واہ، کیا کہنے بھائی، واہ 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 واہ، بہت اچھی بہت اچھی دوسری غزل کے چند اشعار۔ بہت اچھی۔ واہ بھی واہ، نہیں صاحب۔ سوچتا ہوں بہت بولتا کچھ نہیں، واہ واہ، سوچتا ہوں بہت بولتا کچھ نہیں، بولتا کچھ نہیں، اس ریاضت سے اب تک ملا کچھ نہیں، اس ریاضت سے اب تک ملا کچھ نہیں، کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے، اور زندگی اپنی اس کے سوا کچھ نہیں، واہ، زندگی اپنی اس کے سوا کچھ نہیں، واہ کچھ نہیں، محبت کے دل کو جچا کچھ نہیں، واہ، محبت کے دل کو جچا کچھ نہیں، زندگی اپنی اس کے سوا کچھ نہیں، جز محبت کے دل کو جچا کچھ نہیں، واہ واہ واہ، اور یہ کیا بات ہے حقیقت بھائی، ہے، کیا بات اس سے نہ انکار ہے، یہ واہ، حقیقت ہے، اس سے اس نہ سے نہ انکار انکار ہے۔ زندگی ماں سوا بلبلا کچھ نہیں، واہ واہ، حقیقت ہے، واہ، اس سے نہ انکار ہے، زندگی ماں سوا بلبلا کچھ نہیں، یوں تو پہنے ہوئے ہیں سبھی پیرہن، یوں تو پہنے ہوئے ہیں سبھی پیرہن، پر تماشا ہے پردہ ہوا کچھ نہیں، واہ، کیا کرنا، واہ، یوں تو پہنے ہوئے ہیں سبھی پیرہن، پر تماشا ہے پردہ ہوا کچھ نہیں۔ آخری شعر ہے کہ دل کو مطلوب شاید ہے پردہ تیرا، دل کو مطلوب شاید ہے پردہ تیرا، تجھ کو پڑھتا تو ہوں پر لکھا کچھ نہیں، پڑھتا تو ہوں پر لکھا کچھ نہیں، واہ واہ، دل کو مطلوب شاید ہے پردہ تیرا، تجھ کو پڑھتا تو ہوں پر لکھا کچھ نہیں، واہ، واہ، واہ واہ واہ، بہت اچھے، بہت بات ہے، اچھے، کیا بات کیا ہے، کہنے۔ ایک زمانے سے نیر ہے کہتا غزل، ایک زمانے سے نیر ہے کہتا غزل، نیر ہے کہتا غزل، پر جریدوں میں اب تک چھپا کچھ نہیں، ارے واہ واہ، ارے واہ، کیا کہنے بھائی، واہ نیر ہے واہ، بہت کہتا اچھے، غزل، کیا کہنے، واہ واہ واہ، جریدوں میں اب تک چھپا کچھ چھپا نہیں، کچھ، واہ، کیا زندگی کہنے، اپنی اس کے سوا کچھ نہیں، جز محبت کے دل کو جچا کچھ نہیں۔ کیا کہنے، واہ، کیا بھائی، کہنے کیا کہنے۔ کیا بات ہے، کمال کمال، خوبصورت غزلیں نواز رہے تھے جناب خورشید الحسن نیر صاحب۔ میں ایک مشاعرے میں تھا جہاں پر کاوش بنارسی صاحب موجود تھے، ان کا ایک شعر تھا کہ کاوش سفید بالوں میں جب کھو گیا شباب، دنیا نے تب کہا کہ غزل پر نکھار ہے، اور اسی کے برعکس نیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ لکھا مگر چھپا ہی نہیں۔ ماشاءاللہ یہ تضاد ہے اور یہ کہنے کا اپنا اپنا انداز ہے۔ نیر صاحب خوبصورت غزل سے ہم لوگوں کو محظوظ فرما رہے تھے۔ آئیے اپنی فہرست کے دوسرے شاعر کی طرف چلتے ہیں جن کا تعلق سعودی عرب جدہ سے ہے، اور
उनके लिए बस यही दो अशार पढ़ूंगा कि तुम लबो गेसुओ रुखसार को कहते हो गजल, तुम लबो गेसुओ रुखसार को कहते हो गजल, हम तड़पती हुई ख्वाहिश को गजल कहते हैं, और तुम कहो ताजो अजंता व वाह, एलोरा हम को तड़पती गजल, हुई ख्वाहिश हम को तो गजल जख्मों की कहते हैं। नुमाइश को गजल कहते हैं। क्या अनीस बात है। अहमद, अनीस अहमद साहब, आप अपनी गजल से लोगों को मैं अच्छा, बहुत शुक्रिया हसन हाफिज साहब, आपने इनायत। मौका दिया हमें। ये यौमुल वतनी के मौके पर मुशायरा हो रहा है, सबको मुबारकबाद पेश करते हुए जी जी तब साहब की इजाजत तलब करते हुए एक मतलब 2 शेर, उसके बाद एक मुकम्मल जरा। जी मतलब यूं हुआ है कि चाहत का फलक पर जो महताब निकल जाए, चाहत का वाह, फलक पर जो महताब निकल जाए, महताब निकल जाए, हम हिज्र के मारों की तकदीर बदल जाए। क्या बात, अरे वाह वाह, क्या बात है। आमीन, क्या बात है। क्या कहने भाई, वाह वाह, हम हिज्र के मारों की तकदीर बदल जाए। बहुत शुक्रिया। और शेर है कि ऐ दोस्त इरादों में सच्चाई जरूरी है, आए दोस्त इरादों में सच्चाई जरूरी है, मुमकिन है कि सहरा में चश्मा भी उबल जाए। वाह, क्या बात है अनिल भाई, क्या बहुत कहते अच्छे, हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या बात है भाई, बहुत खूबसूरत शेर है। वाह अनिल साहब बहुत अच्छे, मुकर्रर। बहुत खूब। दोस्त इरादों में, ऐ दोस्त इरादों में सच्चाई जरूरी है, ऐ दोस्त इरादों में सच्चाई जरूरी है, मुमकिन है कि सहरा में चश्मा भी उबल जाए। तो एक शेर और देख लें कि रास्ते में परेशानी फिर उसको नहीं होगी, रास्ते में परेशानी तो नहीं होगी, वो शख्स जो पहली ही ठोकर में संभल जाए। बहुत अच्छा, क्या कहने अनीस भाई, वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, बहुत क्या बात है, क्या कहने। क्या बात है, क्या बात है, एक क्या शेर और बात है, देख क्या बात है। लीजिए, एक शेर और देख लिया, गजल का शेर हो गया है कि आंखों से लगा लीजिए, आंखों से लगा लीजिए, सीने से हटा दीजिए, आंखों से लगा लीजिए, सीने से हटा दीजिए, सीने से हटा दीजिए, जज्बात की गर्मी से तस्वीर न चल जाए। वाह, जज्बात की गर्मी से, जज्बात की गर्मी से तस्वीर न जल सीने जाए। से हटा क्या बात है दीजिए, जनाब, जज्बात की क्या गर्मी बात से है। तस्वीर न जल जाए, और चाहत का फलक पर जो महताब निकल जाए, हम हिज्र के मारों की तकदीर बदल जाए। क्या कहने जनाब अली। क्या बात, बहुत खूब। बहुत उम्दा, बहुत, बहुत शुक्रिया। जी जी जी, इनायत इनायत इनायत। एक मुकम्मल गजल पर 3-4 शेर गजल के, जी जी, सहमत है तमाम। बिल्कुल नई गजल है कि मतलब ये हुआ है कि अपने दामन को मेरी यादों से नम रखा है, अपने दामन को मेरी यादों से नम रखा है, उसने उल्फत के सलीके से भरम रखा है। वाह, क्या कहने, क्या कहने। बहुत अपने दामन को मेरी यादों से नम रखा है, उसने उल्फत का सलीके से भरम रखा है। शेर देखिए कि एक झलक उसने दिखाई है कई साल के बाद, झलक उसने दिखाई है कई साल के बाद, दर्द ने दिल में दबे। वाह 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 वाह, क्या कहने जनाब अली, क्या बात है। फिर से आता हो जनाब, बहुत खूबसूरत शेर है। शेर देखिए कि आरती का है सलीका न इबादत का शऊर, आरती का है सलीका न इबादत का शऊर, सबके जहनों में मगर दैरो हरम रखा। क्या कहने, वाह वाह वाह, सबके जहनों में मगर दैरो हरम रखा है। बहुत उम्दा, बहुत बहुत अच्छे। आरती का है सलीका न इबादत का शऊर, सबके जहनों में मगर दैरो हरम रखा है। तो आखिरी शेर देखिए कि बंद आंखों से नजर शान करीमी आई, बंद आंखों से नजर क्या बात है, शान करीमी आई, माने जब सर पे मेरे दस्ते करम रखा है। वाह, माने जब सर पे मेरे दस्ते करम रखा है। बहुत उम्दा भाई, बहुत उम्दा। दोबारा पढ़े जरा। वाह वाह वाह,
माँ ने जब सर पे मेरे दस्ते करम रखा है, क्या कहने। बंद आंखों से नजर शान करीमी आई, माँ ने जब सर पे मेरे दस्ते करम रखा है। और मक्ता देखिएगा कि इसका लिखा हुआ हर लफ्ज ही वजनी है अनीस। वजनी है, बहुत अच्छे। वजनी, इसका लिखा हुआ हर लफ्ज ही वजनी है अनीस, मेरे हाथों में जो हल्का सा कलम रखा है। वाह, क्या कहने भाई, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, इसका लिखा हुआ मेरे हाथों बहुत में अच्छे, हल्का सा कलम रखा। इसका वाह वाह लिखा वाह, हुआ हर लफ्ज ही वजनी है अनीस, वासु मेरे हाथों में जो हल्का सा कलम रखा है। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह, अपने दामन वाह वाह वाह, अपने दामन को बहुत मेरे, उम्दा। बहुत शुक्रिया, अपने दामन को मेरी यादों से नम रखा है, उसने उल्फत का सलीके से भरम रखा। बहुत शुक्रिया बहुत नवाज अच्छे, सर। वो वाला भी शेर सुना दीजिए, बहुत खूब। माँ वाला शेर सुना दीजिए फिर से। बंद आंखों से नजर शान करीमी आई, वाह, बंद आंखों से नजर शान करीमी आई, शान करीमी है। अपने सर पे मेरे दस्ते करम रखा। क्या कहने जनाब अली, बहुत उम्दा, बहुत बहुत शुक्रिया बहुत सभी को, उम्दा, यौमुल वतनी की मुबारकबाद। बहुत खूब। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये थे जनाब अनीस अहमद साहब, खूबसूरत अशार से हम सबको महसूस फरमा रहे थे। आइए हम अपनी फहरिस्त के अगले शायर की तरफ चलते हैं। अनीस अहमद साहब की गज़ल के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मिला है आईना ऐसा कि एक सूरत से मैं जितनी सूरतें चाहूं निकाल सकता हूं। वाह मैं दूर कर नहीं सकता फिजा की वाह भाई बेरंगी, वाह। पर एक मुट्ठी लहू तो उछाल सकता हूँ। हम्म, आइए अपनी फहरिस्त के अगले शायर की तरफ क्या बात। चलते हैं। हफूफ से हकीम असलम साहब को दावत कलाम देता हूँ कि आप आएं और अपनी गजल से हम सबको महसूस फरमाएं। भाई हकीम आपका असलम साहब। कैमरा बंद है, अपना कैमरा खोलिए। जी 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 जी, एक मिनट। कैमरा बंद है? हाँ हाँ, अब खुल गया, खुल गया, माजरत। मैं देखता हूँ। किंग साहब नजर आ गए, आप फिर गायब जी हो गए। अच्छा जनाब, जी, हकीम साहब आइए। कैमरा एक ऑन मिनट करो। मेरे ये सेट, थोड़ी सेटिंग में मुश्किल हो जी गई जी है जी मेरे ना, पता नहीं जी क्या जी, चक्कर है। ठीक है ठीक है, अब ठीक है, आप शुरू करें। आप आवाज आ रही है, कोई मसला नजर आ नहीं। रहे हैं आप, जी बताओ। जी हाँ, कैमरा चालू हुआ कि पता नहीं हो। जनाब? हाँ हाँ जी हो बिल्कुल, गया, हाँ, आप आवाज भी आ आप रही है, देख रहे हैं जी। कैमरा भी कैमरा चालू भी है। साहब चालू है, सदर आवाज भी की आ रही है। इजाजत से आदाब अर्ज। आदाब। तीन शेर पेश खिदमत है, उसके बाद एक गजल पेश जी करूंगा। जी। अर्ज किया है कि मुझे हवादिस ने रफ्ता रफ्ता मुझे हुनर हवादिस ने सिखाए रफ्ता, हैं वाह जिंदगी के, अरे है, क्या हुनर बात है, सिखाए हैं वाह वाह जिंदगी वाह के। वाह। मुझे मुझे हवादिस हवादिस ने ने रफ्ता 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 हुनर रफ्ता। सिखाए सिखाए हैं हैं जिंदगी जिंदगी के, के। क्या मैं कहने। गम की तारीक रह गुजर में वफा की शम्मा जला रहा हूँ। वाह वाह, बहुत उम्दा, बहुत बहुत उम्दा, क्या खूब। बात है बहुत गम भाई, अच्छे। की क्या बात है। तारीक रह गुजर में वफा की शम्मा जला रहा हूँ। बहुत अच्छे, बहुत मेरी अच्छे जनाब नजर अली, को बहुत अच्छे। तेरी खामोशी ने राज सारे बता दिए थे। हाय क्या हाय, बात क्या है, बात। वाह वाह वाह। मेरी वाह वाह, नजर को अदाबर्द, बहुत शुक्रिया जी। मेरी नजर को तेरी खामोशी ने राज सारे बता दिए थे। बता दी। मैं तेज वाह तूफान की जद में आकर भी पूरे कद से खड़ा रहा हूँ। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या मेरी बात क्या है, नजर क्या को बात है। तेरी खामोशी ने राज सारे बता दिए थे। मैं तेज तूफान की वाह जद में वाह। आकर भी पूरे कद से खड़ा रहा खड़ा हूँ। रहा। खड़ा रहा। बहुत खूब। क्या बहुत कभी अच्छे। बात है भाई, क्या बात है। बहुत शुक्रिया जी। कभी अच्छी शायरी हो तबस्सुम रही है जनाब में अली, ढल बहुत गया अच्छे। हूँ, कभी गिरा हूँ मैं अश्क वाह। बनकर। वाह क्या बात है हकीम आहा साहब, वाह। कभी आहा तबस्सुम में ढल आहा। गया हूँ, कभी कभी गिरा गिरा हूँ हूँ अश्क मैं बनकर। अश्क बनकर। कभी किसी के लबों पे असलम मैं बन के हरफे दुआ रहा हूँ। वाह 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 वाह, वाह, वाह कभी वाह किसी, वाह बहुत वाह। शुक्रिया मैं जी, बन बहुत के शुक्रिया, हर पे। जज़ाकल्लाह खैर। क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है जनाब। जी एक गजल पेश खिदमत है। जी आता हो।
جی عطا اب کوئی ان سے ملاقات نہیں پہلی سی. ہائے 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 کیا بات ہے. اب ان سے اب کوئی ان سے ملاقات نہیں پہلی سی. نہیں ہے. بات یہ سچ ہے کہ اب بات نہیں پہلی سی. بات یہ سچ ہے مگر بات یہ بات سچ ہے ہے رسوائی کی. بات یہ سچ کیا ہے بات ہے کیوں؟ کہ اب بات نہیں پہلی سی. عرض ہے کہکشاں آج بھی ہے رخت سفر باندھے ہوئے. بہت خوب. واہ. کہکشاں آج بھی ہے رخت سفر باندھے ہوئے. چاند ہے چاندنی ہے رات نہیں پہلی سی. کیا بات. اچھا شعر ہے. کیا بات. شکریہ. کہکشاں آج بھی ہے رخت سفر باندھے ہوئے. چاند ہے چاندنی ہے رات نہیں پہلی سی. شعر دیکھیے. جب بھی ماضی کے تناظر میں تجھے دیکھتا ہوں. کیا بات ہے. جب بھی ماضی جب بھی ماضی کے تناظر میں تجھے دیکھتا دیکھتا ہوں. سوچتا ہوں کہ تیری ذات نہیں پہلی سی. سوچتا ہوں کہ تیری ذات نہیں پہلی سی. بہت اچھے. بہت اچھے. بات ہے. کیا کہنے بھائی. واہ واہ بہت شکریہ جی. بہت بہت عمدہ ماشاءاللہ. بہت اچھے بہت اچھے. درد بھی کم نہ ہوا رنج بھی جوبن پر رہا. درد بھی کم نہ ہوا رنج بھی جوبن پر رہا. اب کے برسات بھی برسات نہیں پہلی سی. برسات بھی برسات نہیں پہلی سی. آداب. بہت شکریہ جی. بہت اچھے. بہت خوب. حکیم اسلم صاحب آپ خوبصورت بہت اشعار شکریہ جی. بہت پڑھ شکریہ. رہے تھے. شعر دیکھیے. سوچتے سوچتے ہو جاتی ہیں آنکھیں نمناک. نمناک. کیا کہنے بھائی. سوچتے سوچتے ہو جاتی ہیں آنکھیں نمناک. درد ہے درد کی بہتات نہیں پہلی سی. کیا کہنے بھائی. واہ واہ واہ. کیا کہنے جناب علی. واہ واہ واہ. سوچتے سوچتے ہو جاتی ہیں آنکھیں نمناک. درد ہے درد کی بہتات نہیں پہلی سی. اپنے بکھرے ہوئے افکار سمیٹوں کیسے. اپنے بکھرے ہوئے افکار سمیٹوں کیسے. دیدہ دل میں مساوات نہیں پہلی سی. واہ واہ. دیدہ دل میں نہیں. واہ. پھر سے پڑھیے. بہت شکریہ جی. اپنے بکھرے ہوئے افکار سمیٹوں کیسے. اپنے بکھرے ہوئے افکار سمیٹوں کیسے. دیدہ دل میں مساوات نہیں پہلی سی. مقطع عرض ہے. بہت شکریہ جی. مقطع عرض ہے. دل کی وادی میں کبھی پھول مہکتے تھے قمر. دل کی وادی میں کبھی پھول مہکتے تھے قمر. اب تو اس میں بھی کوئی بات نہیں پہلی سی. بات کو بات کو میں بھی نہیں بات. دل کی وادی میں کبھی پھول مہکتے تھے قمر. اب تو اس میں بھی کوئی بات نہیں پہلی سی. کوئی بات نہیں پہلے سی. اب تو اس میں بھی کوئی بات نہیں پہلی سی. بات یہ سچ ہے کہ اب بات نہیں پہلی سی. اب کوئی ان سے ملاقات نہیں پہلی سی. بہت اچھے حکیم اسلم صاحب. کیا کہنے. بہت اچھے اچھے اشعار سے آپ سب کو محسوس فرما رہے تھے. واقعی بہت اچھے اچھے اشعار. خوبصورت غزل. آئیے اب ہماری فہرست میں ایک عدد شاعرہ بھی ہیں جن کا حال ہی میں ایک مجموعہ کلام منظر عام پر آیا ہے. خاموش لمحوں کا سفر. ہم سب سے پہلے انہیں اس مجموعہ کلام کی مبارکباد دیتے ہیں. ابھی 2-3 روز پہلے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اولڈ بوائز ایسوسی ایشن کے تحت ابھی 2 روز پہلے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اولڈ بوائز ایسوسی ایشن کی جانب سے خوبصورت مشاعرے کا انعقاد ہوا تھا. وہاں آپ کی کتاب کا رسم اجرا عمل میں آیا ہے.
اور یقیناً یہ کتاب بہت اچھی ہے. میں نے چند صفحات کی ورق گردانی کی ہے. انشاءاللہ یہ کتاب ادبی حلقوں میں پذیرائی حاصل کرے گی، اور میں آپ کو دعوت کلام دوں گا پروین شاکر کے ان اشعار کے ساتھ کہ اس نے جلتی ہوئی پیشانی پہ جب ہاتھ رکھا، روح تک آ گئی تاثیر مسیحائی کی. وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، بس یہی بات ہے اچھی میرے ہر جائی کی. محترمہ نور جمشید پوری صاحبہ، آپ تشریف لائیں اور آپ اپنے غزل سے ہم سب کو محسوس کریں. حاضر ہیں جو بھی آج کی اس بزم خاص میں، حاضر ہیں جو بھی آج کی اس بزم خاص میں، کرتی ہوں عرض آپ کی خدمت میں سلام. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. صدر محفل کی اجازت سے پہلے کتاب شعر میں ہی سلام پیش کر دیا آپ نے، کیا بات ہے. ہاں جی جی ماشاءاللہ. دن ہے بہت ہی خاص سعودی عرب کا آج، دن ہے بہت ہی خاص سعودی عرب کا آج، ملنا ہے سب سے بھول کے گلے شکوے گلے تمام، ملنا ہے سب سے بھول کے شکوے گلے تمام. لہرا رہا ہے آج جو پرچم ہرا بھرا، لہرا رہا ہے آج جو پرچم ہرا بھرا، امن و اما کا بانٹنے آیا ہے یہ پیام. نارقہ صدر محترم کی اجازت سے میں کوئی غزل نہیں پیش کرنے والی ہوں، کیونکہ وہ سعودی کا قومی دن ہے. اس حوالے سے میں ایک نظم لے کے آئی ہوں جو پچھلے سال ریڈیو پر بھی نشر ہوئی تھی سعودی چینل پر، تو وہی میں پیش کرنا چاہوں گی. اجازت ہے؟ جی بہت شکریہ. عنوان ہے یوم الوطن مبارک. روشن ہر ایک در ہے پر نور ہر نگر ہے، روشن ہر ایک در ہے پر نور ہر نگر ہے، مل کر گلے خوشی سے کہتا ہر ایک بشر ہے. یوم وطن مبارک، یوم وطن مبارک. بہت اچھی، بہت اچھی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. باد صبا بھی خوش خوش ہر سمت بہ رہی ہے، باد صبا بھی باد صبا بھی خوش خوش ہر سمت بہ رہی ہے، خوشبو بھی لو بکھر کر پھولوں سے کہہ رہی ہے. یوم الوطن مبارک، یوم الوطن مبارک. کیا کہنے، بہت کیا اچھی، بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. بہت اچھی. اس بلبل مناسبت بھی سے یہی ہونا گنگناہٹ چاہیے. کلیوں سے لے رہی ہے، جی بلبل بھی گنگناہٹ کلیوں سے لے رہی ہے، چڑیوں کی چہچہاہٹ پیغام دے رہی ہے. یوم الوطن مبارک، یوم الوطن یوم الوطن مبارک. بہت اچھی، ماشاءاللہ، بہت اچھی. بہت شکریہ. یہ شعر دیکھیں کہ پیرو جوان ہو کر خوش آج کیوں نہ جھومے، پیرو جوان ہو کر کیوں نہ جھومے، بچے زمین کے تارے کہتے ہوئے یہ گھومے. یوم الوطن مبارک، یوم یوم الوطن. الوطن مبارک. کیا کہنے، بہت اچھی، بہت اب اچھی. بحر و بر سے کیا دیکھو، بات ہے. اب بحر و بر سے دیکھو شام و سحر سے دیکھو، اب بحر و بر سے دیکھو شام و سحر سے دیکھو، آواز آ رہی ہے شمس و قمر سے دیکھو. یوم الوطن مبارک، یوم الوطن مبارک. یہ دو اشعار پھر سے پڑھیے کیا آپ. بات ہے. بہت شکریہ. قمر سے دیکھو ذرا. اب بحر و بر سے دیکھو شام و سحر سے دیکھو، اب بحر و بر سے دیکھو شام و سحر سے دیکھو، آواز آ رہی ہے شمس و قمر سے دیکھو، آواز آ رہی ہے شمس و قمر سے دیکھو. یوم الوطن مبارک، یوم الوطن مبارک. بہت عمدہ، بہت 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 نوازش. بہت. شکوے گلے بھلا کر سب کو گلے لگا کر، شکوے گلے بھلا کر سب کو گلے لگا کر، کہنا ہے آج ہم کو دل سے یہ ملا کر. یوم الوطن مبارک، یوم الوطن مبارک. یوم الوطن مبارک. بہت اچھے، بہت. اور یہ چاہے جہاں سے آیا، چاہے جہاں سے آیا سب کو وطن یہ بھایا، چاہے جہاں سے آیا سب کو آیا، اپنا ہو یا پرایا مل کر یہ سب نے گایا. یوم الوطن مبارک، یوم الوطن مبارک. چہرہ ہر ایک خندہ سب نے ہی آج پایا، چہرہ ہر ایک خندہ سب نے ہی آج پایا، خوش آج نور یزداں کیوں کر نہ ہو کے آیا. یوم الوطن مبارک، یوم الوطن مبارک. بہت اچھے، بہت اچھے جی، بہت اچھے. اجازت ہے اور چلیے ابھی بہت سارے لوگ باقی ہیں، پھر کبھی انشاءاللہ. جی ہاں، جی ہاں. شکریہ، بہت نوازش. عربی ترجمہ ہونا چاہیے. کافی ہو گئی ہے بس. بہت اچھی نظم آپ سنا رہی تھی. میں آپ کی نظم سننے کے بعد
इतना ही कहूंगा कली माजिद के एक शेर के साथ कि बात चाहे बेसलीका हो कली, बात कहने का सलीका चाहिए। बहुत अच्छे अशार से आप नवाजे, बहुत खूब अशार, मुबारकबाद पेश करता हूँ आपको एक बार फिर। आइए अब अपनी फहरिस्त के अगले शायर की तरफ चलते हैं, जिनका ताल्लुक मस्कत ओमान से है। मेरी मुराद है नासिर मारूफ साहब से। आप आए और अपनी गजल से हम सबको महसूस फरमाएं। शान भाई थोड़ी सी जगह बनाए, मुझे बुला लिया, मुझे बुला लें बाद में, क्योंकि आपको बुला लूंगा तो मुझे अल्लाह माफ नहीं करेगा इतनी जल्दी। आसिफ साहब गालबन मारूफ साहब नहीं है। नहीं है? अच्छा, तो नहीं है तो मैं नाजिम से पहले शायर भी था, आप लोगों को की मालूमात चंद शेर में जनाब सदर की इजाजत के साथ जी। यूं कहा है कि देखें आप सब कि अल्फाज की नगरी का पता पूछ रहा हूँ, अल्फाज की नगरी का पता पूछ रहा हूँ, अल्फाज के कांधों पे गजल अपनी उठाए, अल्फाज की नगरी का पता पूछ रहा हूँ, अल्फाज के कांधों पे गजल अपनी उठाए, और डरता हूँ कि सोया है जो तूफान मेरे अंदर, डरता हूँ कि सोया है जो तूफान मेरे अंदर, एक दर्द की ठोकर से कहीं जाग न जाए। क्या बात है, डरता हूँ, कमाल कर दिया, अच्छा शेर है, सुनाइए। फिर से पढ़िए, फिर से पढ़िए। आवाज की नगरी का पता पूछ रहा हूँ, आवाज की नगरी का पता पूछ रहा हूँ, अल्फाज के कांधों पे गजल अपनी उठाए, और डरता हूँ कि सोया है जो तूफान मेरे अंदर, एक दर्द की ठोकर से कहीं जाग न जाए, दर्द की ठोकर से कहीं जाग न जाए, बहुत खूब, एक दर्द की ठोकर से कहीं जाग न जाए। आइए एक छोटी सी गजल थोड़ा आसान लफ्जों में सुन ले। इरशाद। लाख तकलीफ हो हंस हंस के सहे जाते हैं, तकलीफ हो जनाब सदर से, हंस के सहे जाते हैं। वाह वाह। लाख तकलीफ हो हंस हंस के सहे जाते हैं, लोग जीने की तमन्ना में मरे जाते हैं। लाख तकलीफ हो हंस हंस के सहे जाते हैं, लोग जीने की तमन्ना में मरे जाते हैं, लोग जीने की तमन्ना में मरे जाते हैं, और सर कलम कर दिए जाते हैं कलम वालों के, सर कलम होते हैं बेबाक कलम वालों के, सर कलम होते हैं बेबाक कलम वालों के, होंठ सच बोलने वालों के सिले जाते हैं, सर कलम होते हैं बेबाक कलम वालों के, होंठ सच बोलने वालों के सिले जाते हैं। और ये शेर, होंठ सच बोलने वालों के सिले जाते हैं, और सांप ने अपनी रविश यूं ही नहीं बदली है, सांप ने अपनी रविश यूं ही नहीं बदली है, अब तो इंसान ही इंसान से डसे जाते हैं। क्या कहने सांप ने यूं ही नहीं अपनी रविश बदली है, अब तो इंसान डसे जाते हैं। क्या बात, सांप ने यूं ही नहीं अपनी रविश बदली है, अब तो इंसान ही इंसान से डसे जाते हैं। और ये शेर बतौर खास, और उसके बाद मख्ता भी बतौर खास महसूस हुआइए कि मेरे बिस्तर की शिकन ही मेरी हमदर्द है बस। क्या बात है, मेरे बिस्तर की शिकन ही मेरी हमदर्द है बस, लोग आते हैं अयादत को चले जाते हैं। क्या बात है, मेरे बिस्तर की शिकन ही मेरी हमदर्द है बस, लोग आते हैं अयादत को चले जाते हैं। अब मेरा ताल्लुक हिंदुस्तान के शहर बनारस से है, आप सब जानते होंगे, बड़ा मारूफ शहर है, तारीखी शहर है, ठीक है। तो मख्ता सुन ले उसी मुनासिबत से, शायद आप लोग वहां तक पहुंच जाए। लोग आते हैं अयादत को चले जाते हैं, और कोई हस्सान की देखो जरा सादा लोही,
कोई हसान की देखो जरा सादा लोही, हैं बनारस के मगर फिर भी ठगे जाते हैं। वाह 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 है वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, है बनारस के मगर ठीक इशारा दिया। ठगने वाले लोग ठगे जा रहे हैं। कोई हसान की देखो जरा सादा लोही, कोई हसान की देखो लोगों को ठगना जरा सादा, कोई हसान की देखो जरा सादा लोही, हैं बनारस के मगर फिर भी ठगे जाते हैं। ठगे जाते हैं। इसका जवाब में भी साहब का कलाम माफ, मेरे ख्याल में जो हिंदुस्तान से नहीं है वो भी जानते होंगे कि बनारसी ठग बड़े मशहूर होते हैं। जी बनारस की नहीं, ठगने वाले को बनारस वाले ने जिता दिया है असल में जी। बड़ी मारूफ फिल्म भी आई थी बनारसी। पाकिस्तान में तो ये फिल्म भी बनी थी। जी 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 जी। साड़ी मशहूर है ना। आइए अब मैं अपनी फहरिस्त के शहर की तरफ, उस शहर की तरफ चलूंगा। यूं तो रियाद में मेरे कई बेहतरीन दोस्त हैं, अहबाब हैं, जिन्हें जब मैं फ़ोन करता हूँ वो तब हाजिर हो जाते हैं, और जब मैं उन्हें फ़ोन करता हूँ वो हाजिर हो जाते हैं। तो एक बड़ी तवील फहरिस्त है मेरे अहबाब की रियाद में, और उन्हीं फहरिस्त में एक ऐसा भी शख्स है मैं जिसके खुलूस और मोहब्बत की मिसालें दिया करता हूँ। मैं पहले उन्हें नहीं जानता था, इन्हीं मुशायरों के पैनलों में मेरी उनकी शनासाई हुई, फिर दोस्ती हुई, फिर हम लोग एक दूसरे से मिले, और मिलने के बाद मैं इतने ताज्जुब में था कि इतने अच्छे शख्स से मैं इतने दिन महरूम कैसे रहा। उनका खुलूस मोहब्बत इस कदर है कि यकीनन अगर आप भी उनसे मिलेंगे तो आपकी तशनगी कम नहीं होगी। बेहतरीन शख्स हैं, खुलूस उनके अंदर भरा हुआ है, और पेशे से इंजीनियर है, लेकिन दिलों के जीतने का भी हुनर जानते हैं। मैं उन्हें इन्हीं अशार के साथ दावत कलाम दूंगा कि गज़ल की शाख पे एक फूल खिलने वाला है, बदन से आने लगी जाफरान की खुशबू, मेरी मुराद है इंजीनियर कली सलीम काबिज साहब से। वाह वाह, शाद जनाब, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। मुझे मेरे बहुत अजीज दोस्त अहबाब सब नजर आ रहे हैं। खुर्शीद साहब हैं, बाकी साहब हैं, और आप हैं। माशाल्लाह, अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। 23 सितंबर के हवाले से मैं एक नज़्म लिखी थी, उसके 2 शेर सुना देता हूँ। क्योंकि हम जैसे नूर बाजी ने कहा था कि जो भी आता है यहाँ पे यानी दूसरे लफ्जों में एडजस्ट हो जाता है। यह है कि अर्ज़ है कि मैं जिस जमीन से हिफ्ज़ो अमान लेता हूँ, वाह वाह, मैं जिस जमीन से हिफ्ज़ो अमान लेता हूँ, मैं उसको माँ सी नहीं माँ ही मान लेता हूँ। वाह वाह वाह, क्या कहने, बेहतरीन, वाह क्या कहने, वाह भाई वाह, वाह सलीम साहब, वाह सलीम साहब, बहुत सलीम भाई दोबारा पढ़ दें। मैं जिस जमीन से हिफ्ज़ो अमान लेता हूँ, मैं उसको माँ सी नहीं माँ ही मान लेता हूँ। क्या कहने, ये रेगज़ार अरब है शरीर जाह मेरा, ये रेगज़ार अरब है शरीर जाह मेरा, मैं इस पे खैमाए हरमैन तान लेता हूँ। क्या कहने, वाह वाह, क्या बात है भाई। सलीम भाई फिर से पढ़िए, सलीम भाई फिर से पढ़िए। वाह वाह, बहुत खूब। मैं जिस जमीन से हिफ्ज़ो अमान लेता हूँ, मैं उसको माँ सी नहीं माँ ही मान लेता हूँ। ये रेगज़ार अरब है शरीर जाह मेरा, ये रेगज़ार अरब है शरीर जाह मेरा, मैं इस पे खैमाए हरमैन तान लेता हूँ। वाह 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 वाह, तान लेता हूँ। बेशक, वाह वाह, हमारे ईमानों का हिस्सा है। बहुत शुक्रिया। मैं एक गज़ल पेश करता हूँ। कुछ दोस्तों ने पहले सुनी होगी गज़ल के हवाले। वैसे तो मैं ज्यादा सोशल जो मुआशरती और सियासी हवाले से हैं उस पर लिखता हूँ, लेकिन कुछ गज़लें ऐसी हैं मैं सुना देता हूँ जी। देर से आई सही याद तेरी आई तो, देर से आई सही
یاد تیری آئی تو ہو گئی پھر سے میری انجمن آرائی تو ارے واہ 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 کیا کہنے واہ بھائی، واہ 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 واہ، دیر سے آئی سہی، دیر سے آئی سہی، یاد تیری آئی تو ہو گئی پھر سے میری انجمن آرائی تو، اور جان کر مجھ سے ہو انجان خدا خیر کرے، جان کر مجھ سے ہو انجان خدا خیر کرے، جان کر مجھ سے ہو انجان خدا خیر کرے، اے میری جان میری جان پہ بن آئی تو ارے واہ، اس تو کا جواب نہیں بھائی، واہ واہ واہ، جان کر مجھ سے ہو یہ والا تو انجان، بہت بہترین تھا، بہت اچھے، جان کر مجھ سے ہو انجان خدا خیر کرے، اے میری جان میری جان پہ بن آئی تو بہت خوب سلیم بھائی، بہت اچھے، واہ واہ واہ، اے مجھے وعدہ ضبط میرے پیش نظر ہے لیکن، وعدہ ضبط میرے پیش نظر ہے لیکن، آہ بھرنے سے اگر ہو گئی رسوائی تو کیا کہنے، بہت، آہ بھرنے سے اگر ہو گئی رسوائی تو، اب تو شکوہ ہے میری پہلو تہی سے جانا، اب تو شکوہ ہے میری پہلو تہی سے جانا، جب طبیعت میرے پہلو میں بھی گھبرائی تو، کیا بات ہے، کیا بات، اب تو شکوہ ہے میری پہلو تہی سے جانا، جب طبیعت میرے پہلو میں بھی گھبرائی تو، میں کسی روز تجھے خواب میں چھو لوں لیکن، کیا بات میں ہے، کسی کیا بات ہے، روز کیا بات ہے، میں کسی روز تجھے خواب میں چھو لوں لیکن، تیری خوشبو میری سانسوں میں اتر آئی تو، تیری خوشبو میری سانسوں میں اتر آئی تو، میں کسی روز تجھے خواب میں چھو لوں لیکن، تیری خوشبو میری سانسوں میں اتر آئی تو، اور اجنبی تم سے رہو رسم بڑھاؤں کیسے، اجنبی تم سے رہو رسم بڑھاؤں کیسے، ہو گئی تم سے کوئی گہری شناسائی تو، کیا کہنے، کیا کہنے، بہت سلیم شکریہ، بھائی دوبارہ پڑھیں، اجنبی تم سے رہو رسم بڑھاؤں کیسے، اجنبی تم سے رہو رسم بڑھاؤں کیسے، ہو گئی تم سے کوئی گہری شناسائی تو، کیا بات ہے، اور مختار زے، کیا خبر کس کی دعا مجھ کو لگے گی کاوش، کیا خبر کس کی دعا مجھ کو لگے گی کاوش، پرسش حال کو ایک خلق خدا آئی تو، کیا کہنے بھائی، خبر کیا خبر بہت اچھے، بہت اچھے، واہ واہ، کیا خبر بہت اچھے، کیا خبر کس کی دعا مجھ کو لگے گی کاوش، پرسش حال کو ایک خلق خدا آئی تو، میں کسی روز تجھے خواب میں چھو لوں لیکن، کیا بات تیری ہے سلیم خوشبو صاحب، بہت خوبصورت شعر تیری ہے، خوشبو میری سانسوں میں اتر آئی تو، بہت شکریہ جی حسان صاحب اور سب احباب، بہت شکریہ، بہت بہت خوبصورت، دل بہت جیت ساری لیتے ہیں داد آپ، جناب بہت سلیم صاحب، ماشاء اللہ، سلیم صاحب یہ بڑا معنی خیز تھا، سوالیہ انسان جو تھا بڑا معنی جی خیز جی ہے، ارے بڑے اچھے اشعار، لیکن سبحان اللہ سبحان اللہ، زبردست ہیں بھائی ہمارے سلیم بھائی، یہ تو غزل، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ غالب نے ہی غزل کو تہذیب کا درجہ دیا ہے، جس قدر غزل خوبصورت انداز میں آپ پیش کر رہے تھے، تو یہ غالب نے ہی غزل کو تہذیب کا درجہ دیا ہے، اور یہ غالب ہی کا تصرف تھا جس نے غزل کو ہمارا کلچر اور ہمارے کلچر کو غزل بنا دیا، اور اسی کا ایک خوبصورت نمونہ سلیم کاوش صاحب پیش کر رہے تھے، ہم سب محظوظ ہو رہے تھے۔ آئیے ہم اپنی فہرست کے اگلے ماشاء شاعر اللہ، کی طرف چلتے ہیں، جو اپنے منفرد لب و لہجے کے لیے جانے جاتے ہیں اور ریاض میں ایک شناخت بن چکے ہیں، مشاعرے میں آپ کی شرکت ایک کامیابی کی دلیل بن جاتی ہے، آپ شاعرات اور شعراء کی فہرست میں
ऐसे नुमायां होते हैं कि सामीन से लेकर ऑर्गेनाइज करने वाले जब उस शख्स को अपने अपने मुशायरे में महसूस करते हैं तो बहुत खुश होते हैं। मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक है, आपने 30 साल से ज्यादा का अरसा सऊदी अरब में गुजारा है। सहरा में शाम के नाम से आपकी एक किताब मंजर आम पे आ चुकी है। उनके कई अशार मुझे ज़बानी याद हैं। उनमें से 2 अशार जो मुझे बेहद पसंद है, और वो एक ऐसी गज़ल है जो हर दौर में जिंदा रहेगी, और ऐसी शाइस्ता और सरसब्ज गज़ल है। 2 अशार सुनिए, आप उनकी शख्सियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगरचे बोल रहा है बड़े यकीन के साथ, अगरचे बोल रहा है बड़े यकीन के साथ, उसे खबर नहीं मैं भी हूँ सामीन के साथ, खबर नहीं कि मेरे घर को राख कर देगा, उसे खबर ही नहीं मैं भी हूँ सामीन के साथ, खबर नहीं थी मेरे घर को राख कर देगा, वो मेरा चाय का पीना किसी हसीन के साथ। इंजीनियर सुहैल इकबाल अली, उनसे बड़े ही अदब और एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ कि आए और अपनी गज़ल से हम सबको महसूस फरमाएं। इरशाद फरमाइए। सबसे पहले मैं तमाम हाज़रीन महफिल की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और सदर महफिल की इजाज़त से वालेकुम अस्सलाम जनाब। मैं चंद मुतफर्रिक़ अशार पेश करता हूँ। गज़ल से पहले मतलब है कि बरपा दुनिया में इस्तराब न कर, बरपा दुनिया में इस्तराब न कर, खुद को इतना भी बेहिजाब न कर। वाह क्या बात है भाई, क्या बात है। बरपा दुनिया में इस्तराब न कर, खुद को इतना भी बेहिजाब न कर, हिजाब न कर, देख कर अक्स अपनी आंखों का, देख कर अक्स अपनी आंखों का, सारे तालाब को शराब न कर। वाह वाह, सारे तालाब को शराब न कर। क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है। सारे तालाब को शराब न कर। वाह वाह वाह, सारे तालाब को मतलब नजर हो कि आप जब से सरे बाजार नजर आने लगे, अरे वाह, आप जब से सरे बाजार नजर आने लगे, आप जब से सरे बाजार नजर आने लगे, सब दुकानों पे खरीदार नजर आने लगे। क्या बात है, नजर आने लगे, क्या कहने, क्या कहने। आप जब से सरे बाजार नजर आने लगे, क्या बात है भाई। जब से सरे बाजार नजर आने लगे, सब दुकानों पे खरीदार नजर आने लगे। क्या बात है। दीन पे चलने की तौफीक हुई है जब से, दीन पे चलने की तौफीक हुई है जब से, आपको सभी गुनहगार नजर आने लगे। आपको सभी गुनहगार नजर आने लगे। दीन पे चलने की तौफीक हुई है जब से, आपको सभी गुनहगार नजर आने लगे। पहली ही रात में परदेश में जब नींद आई, पहली ही रात में परदेश में जब नींद आई, अपने घर के दरो दीवार नजर आने लगे। पहली ही रात में परदेश में जब नींद आई, अपने घर के दरो दीवार नजर आने लगे। मतलब मुलाजा हो एक और के एक बात सरसरी सही फिर भी हुई तो है। जी अच्छा बात सरसरी सही, एक बात सरसरी सही फिर भी हुई तो है। जी उम्मीद रस्म राह किसी से बढ़ी तो है। अरे वाह कहने एक बात सरसरी सही फिर भी हुई तो है, उम्मीद रस्म राह किसी से बढ़ी तो है। वाह बैठा है पास मेरे चलो हाल पूछ लो, बैठा है पास मेरे चलो हाल पूछ लो, माना कि अजनबी है मगर आदमी तो है। अरे वाह अच्छा बैठा है पास मेरे चलो हाल पूछ लो, माना कि अजनबी है मगर माना कि अजनबी आदमी तो है।
माना कि अजनबी है मगर आदमी तो है। आदमी तो है। बहुत अच्छे शेर। आखिर में चंद शेर एक गजल के पेश करता हूँ कि लोग जो तेरे बदलने की दुआ मांगते हैं, लोग जो तेरे बदलने की दुआ मांग लोग जो तेरे बदलने की दुआ मांगते हैं, रात में धूप निकलने की दुआ मांगते हैं। अरे वाह 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 वाह। लोग जो तेरे बदलने की दुआ मांगते हैं, रात में धूप निकलने की दुआ निकलने की मांगते दुआ हैं। मांगते हैं। क्या कहें, मुझसे वाबस्ता है कुछ उनकी उम्मीदें शायद, मुझसे वाबस्ता है कुछ उससे उनकी उम्मीदें वाबस्ता है। शायद, मुझसे वाबस्ता है कुछ उनकी उम्मीदें शायद, जो मेरे फूलने फलने की दुआ मांगते हैं। अरे वाह वाह वाह, वाह। क्या कहने। वाह 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 वाह। मुझसे वाबस्ता है कुछ उनकी उम्मीदें शायद, जो जो मेरे मेरे फूलने फलने फलने की फलने दुआ की मांगते दुआ हैं। मांगते हैं। और शेर है कि पहले तो मुझको पिलाते हैं वो आंखों से शराब, पहले तो मुझको पहले तो मुझको पिलाते हैं वो आंखों से शराब, से शराब, और फिर मेरे संभलने की दुआ मांगते हैं। क्या कहने, अच्छा अच्छा क्या अच्छा। कहने भाई, वाह वाह। पहले क्या तो बात अरे मुझको है वाह पिलाते वाह, भाई, हैं क्या वो बात। आंखों से शराब, शराब। और फिर मेरे संभलने की दुआ मांगते हैं। अपनी हम्म, हालत को बदलने की नहीं है कोशिश, क्या बात। अपनी हालत को बदलने की नहीं है कोशिश, अपने बस ये हालात कि बदलने नहीं की है दुआ कोशिश। मांगती है। वाह वाह माशाल्लाह, वाह वाह अच्छा वाह वाह। क्या वाह कहने भाई, वाह वाह हालत को वाह। बदलने हालात की नहीं बदलने है की दुआ कोशिश, मांगते हैं। क्या बात है बहुत भाई। अच्छे। अपने हालात बदलने की वाह दुआ वाह वाह मांगते हैं। वाह। क्या कहने, क्या कहने। आखिरी बहुत शेर के, बहुत। याद करते हैं तुझे चांद को तकते हुए हम, वाह वाह। याद करते हैं याद तुझे करते हैं तुझे चांद को चांद तकते चांद को हुए करते तकते हम, हुए हम, और एक चांद निकलने की दुआ मांगते हैं। दुआ मांगते हैं। क्या अच्छा कहने, अच्छा सुहेल क्या भाई। कहने भाई, बहुत और अच्छे एक सर, चांद निकलने की दुआ मांगते हैं। बहुत अच्छे, लोग वाह जो वाह तेरे वाह। बदलने की दुआ मांगते हैं, दुआ मांगते हैं। रात में वाह धूप बहुत निकलने की दुआ मांगते हैं। बहुत क्या शुक्रिया। बहुत कहने, अच्छे धन्यवाद। बहुत वाह बहुत बहुत बस खूब। बहुत बहुत खूब अच्छे अशर। बहुत खूब बहुत अच्छे। ये थे बहुत सुहेल इकबाल साहब, बहुत उम्दा। दोस्तों मैं तस्दीक करना चाह रहा हूँ कि नासिर मारूफ साहब, नदीम सर माहिर मुझे बुला साहब लिया और मैं आपको बुला लूंगा। मेरी यकीन मेरी मानिए मैं मेरी आपको बात बुलाऊंगा। सुने, कमरे का थोड़ा मसला है इसीलिए कह रहा था, नहीं तो मैं ठीक ये है, नहीं कहता। मैं बुलाता हूँ आपको। नासिर मारूफ साहब, नदीम माहिर साहब और अफरोज आलम साहब मौजूद हैं या नहीं है, और वो जब आए तो मुझे बराए करम बता दें। नहीं, मौजूद नहीं है। जी मौजूद मैं नहीं नहीं, है। बता दूंगा। अफरोज भाई नहीं है, नहीं है। निगाहों से शराब की बात हो रही थी तो मुझे इनायत बनारसी का एक शेर याद आ रहा था कि वो मस्त निगाहों से मुझे देखते रहे और मैं समझ रहा था कि है रूबरू शराब। शराब के सिलसिले से खूबसूरत शेर सुनाया सुहेल अकबाल साहब ने। आइए, यकीनन मैं सईद नज़र साहब को बखुदा इस वक्त नहीं बुलाना चाहता था, और मैं उन्हें बुलाने के लिए, दावत देने के लिए खुद से तैयार भी नहीं था, क्योंकि मैं अपनी फहरिस्त के मुताबिक चलता हूँ, और जब तक मैं आप तक पहुँचता तब तक शायद मेरी निज़ामत के रंग कुछ और होते। लेकिन यह आपकी गुजारिश है जिसका मैं एहतराम कर रहा हूँ, और आपको दावत कलाम दे रहा हूँ इन अशार के साथ कि उस इसी से कीजिए बेबाकी कातिल का अंदाजा, लहू की बूंद शबनम की तरह खंजर पर रखी है। सईद वाह नजर साहब, दावत कलाम। जी बहुत बहुत सही साहब। शुक्रिया। और ईद उल जो वतन है सऊदी अरब के, इस मौके पर सबकी खिदमत में मुबारकबाद। ये महफिल भी आज इसलिए भी जो है बहुत अहम हो जाती है कि एक अरसे बाद बाकी अहमद पुरी साहब को, शहीद रोशन को मैं देख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एक अरसा हुआ और मुझे मुझे खुशी महसूस हो रही है। आइए मैं इस मतले के साथ अपनी बात का आगाज कर रहा हूँ। दो चार जो है अशार, फिर जो है एक मुकम्मल गजल। कल्ब मुस्तर सह रहा है, छोटी सी बहर है। जी जी जी। कल्ब मुस्तर सह रहा है। सह रहा है,
घर जो अपना डह रहा, वाह वाह, कल्ब मुस्तर कह रहा है, घर जो अपना डह रहा है, तेरे अंदर से मुसलसल जहर कितना बह रहा। तेरे अंदर से मुसलसल कितना जहर बह रहा है, जहर कितना बह तेरे अंदर से मुसलसल जहर कितना बह रहा कितना है। बह, और शेर देखिए कि बुझ गया वो जाने कैसे, बुझ गया वो जाने कैसे, ये कामिल मह रहा है। वाह कामिल मह रहा है। वाह वाह क्या वाह, कहने वाह, भाई, कामिल मह रहा है, वाह वाह, बहुत अच्छा। बुझ गया वाह वो वाह जाने वाह कैसे, हम्म, ये कामिल मह रहा है। वाह फिर देखें कि नक्श छोड़ा दिल पे वो एक, नक्श छोड़ा दिल पर वो एक, लम्हा भर गरचे रहा है। वाह, वाह, बहुत अच्छा। क्या कहने भाई, बहुत अच्छा। वाह वाह, छोड़ा चेहरा दिल पे वो दिल एक, पे वो लम्हा भर बाहर गरचे जो रहा है। और शेर देखिएगा कि फिर भी शक होता है इस पर, फिर भी शक होता है इस होता है पर, उस पर, साथ अपने रह रहा है। अरे साथ वाह अपने रह वाह रहा। वाह, वाह वाह, वाह 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 साथ अपने रह रहा है, क्या वाह कहने, वाह फिर भी शक होता है इस पर, साथ साथ अपने अपने रह रहा रह है। रहा है। वाह वाह वाह, कद्र इसकी कर रहे हैं, हम्म, ऐ नजर जो शह रहा है। वाह, वाह वाह, वाह कद्र इसकी कर रहे हैं। और देखिएगा कि एक मुकम्मल गजल समात फरमाए। मांगी थी एक हसीना से तनवीर की गजल, वाह मांगी थी एक हसीना से तनवीर की गजल, दे दी उठा के अपनी ही तस्वीर की गजल। वाह वाह, क्या कहने भाई, बहुत उम्दा, बहुत बहुत। मांगी थी एक हसीना से तनवीर की गजल, दे दी उठा के अपनी ही तस्वीर की गजल। ये शेर बतौर खास कहा है कि ऐसा नहीं कि गुल के ही साये में हम रहे, ऐसा नहीं ऐसा नहीं कि गुल के ही साये में हम रहे, पुरखार रास्ते पर भी तहरीर की गजल। वाह वाह ऐसा नहीं कि गुल के ही साये में हम रहे, पुरखार रास्ते पर भी तहरीर की गजल। और ये शेर देखिएगा कि लफ्जों में हौसलों का समुंदर है मौजज़न, बहुत खूब, लफ्जों लफ्जों में में हौसलों का समुंदर है मौजज़न, किस पाए की है देख जहांगीर की गजल। वाह 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 लफ्जों में हौसलों का समुंदर है मौजज़न, किस पाए की है देख जहांगीर की गजल। और बाकी साहब ये शेर देखिएगा कि जब वक्त आया ऐसा तो, जब वक्त आया ऐसा तो करना पड़ा मुझे, जी वाह जब वक्त आया ऐसा तो करना पड़ा मुझे, जंजीर में भी जब वक्त आया ऐसा तो करना पड़ा मुझे, जंजीर में भी डाली है शमशीर की गजल। बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत। जब वक्त आया, जब वक्त आया ऐसा तो करना पड़ा मुझे, जंजीर में भी ढाली है शमशीर की गजल, जंजीर में भी ढाली है शमशीर की शमशीर की गजल। और शेरों के यूं नुजूल से साबित हुआ है ये, वाह वाह शेरों के यूं नुजूल से साबित हुआ है ये, पाली है आज मैंने भी तकदीर की गजल, वाह वाह, पाली है आज मैंने भी तकदीर की गजल। और शेर देखिएगा कि हम पर बड़ी ही उसकी इनायत हुई है आज, हम डिस्टर्बेंस हो रही है कुछ, देखें कि हम पर बड़ी ही उसकी इनायत हुई है आज, तोहफे में दे गया हमें तासीर की गजल। वाह 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 वाह, बहुत वाह वाह और ये शेर देखिएगा कि खारी की सूझबूझ भी उस मर्तबे की हो,
कारी की सूझबूझ भी उस मर्तबे की हो, गहरी बहुत है सादा सी ये मीर की गजल। वाह गहरी बहुत है, सूझबूझ भी सादा उस सी। मर्तबे की हाँ, हो, गहरी बहुत है सादा सी ये मीर की गजल। और मक्ते से पहले एक आखिरी शेर गजल का कि देखें कि आगाज से ही उसका असर हम पे था बहुत। आगाज से ही उसका असर हम पे था बहुत, हमने भी बड़े चाव से तस्तीर की गजल। पीर की गजल, वाह। आगाज से ही उसका उस आगाज से ही उसका असर हम पे था बहुत, हमने भी बड़े चाव से तस्तीर की गजल। और मक्ता कहा है कि गेसू सवारने में वो मसरूफ इसके है, गेसू गेसू सवारने में वो मसरूफ इसके है, रांझा को भाग गई है नजर हीर की गजल। हीर की गजल मांगी थी एक अच्छा हसीना से तनवीर की गजल, दे दी उठा के अपनी ही तस्वीर की गजल। बहुत अच्छे से बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहने भाई, वाह 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 भाई वाह। बहुत उम्दा, बहुत अच्छी रदीफ पर गजल काफी दिनों के बाद सुनने को मिली। हाफिज बनारसी साहब की का मजमूए कलाम गजाला गालिबन, और उनकी पहली गजल कुछ इस अंदाज की है कि रक्स अमवाजे बहारा है गजल के अंदर, किस कदर कैफ का सामा है गजल के अंदर। मुझे उनके अशार याद आ रहे थे, आपकी गजल माशाल्लाह। सईद नजर साहब, हम आपको काफी ताखीर के साथ सुनना चाहते थे, मगर ये आपकी ख्वाहिश थी जिसका हम लोगों ने एहतराम किया। आइए अब अपनी फहरिस्त के अगले शायर की तरफ चलते हैं। आप लोगों ने एक मारूफ जरीदे का नाम तो ज़रूर सुना होगा, नकीब अल खलीज। हमारी फहरिस्त के अगले शायर उसी मारूफ जरीदे के मुदीर हैं, और आपका ताल्लुक झारखंड से है। झारखंड की सरजमीन शेर व सुखन के मामले में बड़ी जरखेज है, जहाँ से प्रकाश फिक्री, वहाब दानिश, परवेज रहमानी और आज के दौर में इस वक्त एक मारूफ नाम खुर्शीद तलफ, जिसने अदबी उफुक पर अपने लबो लहजे से बड़ा नाम हासिल किया है, उसी सरजमीन से एक ऐसा शायर जिसे हम सब मंसूर कासमी के नाम से जानते हैं। आइए एक रुबाई से उन्हें दावत कलाम दूं कि इंसान की इंसान से नफरत कैसी, ये बुग़्ज़ तासुब ये अदावत कैसी, और खेतों में उगाते हो सरों की फसलें, अरबाब सियासत ये सियासत कैसी। मंसूर कासमी। बहुत शुक्रिया हसन हाफिज साहब। सदर मोहतरम की इजाज़त से वाकई में बाकी अहमदपुरी साहब को बहुत दिन के बाद देख रहा हूँ। हालांकि मेरे पास जहान बाकी आ चुकी है, किताब आ चुकी है, तो मैं बिला तमहीद फिर पेश किए देता हूँ। मुंतशिर ज़हन के असबाब न पूछो हमसे, मुंतशिर ज़हन के मुंतशिर ज़हन के असबाब न पूछो हमसे, किस तरह टूट गए ख्वाब न पूछो हमसे, किस तरह टूट गए ख्वाब न पूछो हमसे, एक खला है कि नहीं भरता हमारे अंदर, एक खला है कि नहीं भरता हमारे अंदर, भर गए कितने ही तालाब न पूछो हमसे, भर गए कितने ही तालाब न पूछो हमसे, जर्द मौसम है क्या आंखों से नहीं जाता है, जर्द मौसम है कि आंखों से नहीं जाता है, किस तरह कल्ब हो शादाब न पूछो हमसे, तरह कल्ब हो शादाब न पूछो हमसे, एक फिरका है बदन पर जो पड़ा रहता है, फिरका है बदन पर जो पड़ा रहता है, क्या है अतलसो कम ख्वाब न पूछो हमसे, क्या है अतलसो कम ख्वाब न पूछो हमसे, शबे तारीख उतर आई हमारे आंगन, शबे तारीख उतर आई हमारे आंगन, किसके घर उतरा है महताब न पूछो हमसे,
के घर है महताब न पूछो हमसे, अहले दस्तार बताएंगे कि लूटा किसने, अहले दस्तार बताएंगे कि लूटा किसने, अजमते मेंबरो मेहराब न पूछो हमसे, अजमते मेंबरो मेहराब न पूछो हमसे, किसने तहजीब के दामन को सदा नोचा है, किसने तहजीब के दामन को सदा नोचा है, कौन है साहिब आदाब न पूछो हमसे, कौन है साहिब आदाब न पूछो हमसे, सिर्फ मंसूर नहीं मौजे हवादिस का शिकार, सिर्फ मंसूर नहीं मौजे हवादिस का शिकार, कैसे कैसे हुए गरकाब न पूछो हमसे, कैसे कैसे मंसूर नहीं मौजे हवादिस का शिकार, कैसे कैसे हुए गरकाब न पूछो हमसे, बहुत अच्छा जहन के असबाब न पूछो हमसे, किस तरह टूट गए ख्वाब न पूछो हमसे। बहुत शुक्रिया हसन साहब, आप प्रोग्राम आगे बढ़ाए, बहुत सारे हबाब हैं। हसन साहब, मुझे नदीम माहिर साहब नजर आ रहे हैं, अगर आप एक बार आवाज दे दें। नदीम माहिर साहब, मंसूर भाई आप हो गया, मैं माजरत एक मिनट के लिए गया था, जरा पढ़ लिया आपने, मैं सुन भी नहीं पाया, बड़ी माजरत। नदीम माहिर साहब तशरीफ रखते हैं? अभी तो नजर आए थे, फिलहाल तो नहीं। मुझे जल्दी बुला लें तो मेहरबानी होगी, मैं इस वक्त तक तो मैं गजलें भूल भाल जाता हूँ। आपको सिर्फ हम इंतजार कर ले, क्योंकि हमारी फेहरिस्त में बाकी साहब आपको जल्दी नहीं बुलाया जा सकता। बाकी साहब आपके अभी गजल लिख रहे हैं क्या अभी क्या? बाकी साहब हम सिर्फ आपको देखते रहेंगे, जल्दी काफी नहीं दिनों बुलाया जा बाद सकता, सलाम अर्ज़ है। नहीं पैदा होता। अच्छा, और मेरे साथ एक साजिश हुई है, मैं बता दूं, ये छोटे भाई हैं हमारे अफरोज। आपको जल्दी बुलाया गया, अगर आप जल्दी बुलाए गए तो हम मुशायरा नहीं पढ़ेंगे। मैंने कई बार कहा कि बाकी अहमद पुरी साहब उनकी सदारत में ये मुशायरा करवाएं, और पता नहीं वो भूल गए क्या हुआ, फहरिस्त वैसे ही छोड़ दिया। हमने कहा था इसको बदले भाई, वो बाकी अहमद साहब की सदारत में पढ़ूंगा। नहीं भाई, भाई बात सुनिए, बात सुनिए, बाकी साहब किंग है विदाउट किंगडम, वो कहाँ भी जहाँ कहीं भी हो वो हमारे सदर हैं, सीधी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक बेशक। चलिए, ये फयाज साहब ने, हमने उनके साए में शायरी की सांसें ली है भाई। हमारी फेहरिस्त में अब चंद नाम रह गए हैं, जिनमें फयाज वर्दिक साहब और हमारे दोनों मेहमान और जनाब सदर। अगर इनके अलावा कोई और शख्स मुझसे छूट रहा हो तो वो मुझे बता दें। और कामरान साहब, कमरान साहब आप ठीक है? कमरान साहब, मैं तो आप लोगों को प्रमोट कर रहा हूं, बस यही मेरा काम है। अच्छा, मैं ठीक है, मेरा डाउट यहीं पे था और क्लियर हो गया कि हमारी फेहरिस्त में फयाज वर्दिक साहब और दोनों मेहमानान और जनाब सदर, ये चार अहम शोरा अब मुशायरा मैदान पर आ गया है। और फयाज वर्दिक साहब के बारे में क्या कहूँ, मैंने आपको जब जब पढ़ते हुए सुना है, कुछ न कुछ और कोई न कोई ऐसे मोती अपने दामन में ज़रूर समेट लिए हैं जो मेरी इल्मी सलाहियतों में इजाफा ही करता रहा। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, आपको इन्हीं अशार के साथ दावत कलाम दूंगा कि फयाज भाई आज जबरदस्त तरन्नुम होना चाहिए। बिल्कुल। बशीर बद्र के अशार से आपको दावत कलाम दूंगा कि सर से पा तक फयाज भाई एक मिनट, बस एक मिनट, तहत में सुनाए सर, तहत में ही सुनाए फयाज भाई, एक मिनट बस। सर से पा तक वो गुलाबों का शजर लगता है, बावजू हो के भी छूते हुए डर लगता है। गुलाबों का शजर लगता है, गुलाबों का शजर लगता है, बावजू हो के भी छूते हुए डर लगता है। फयाज वर्दिक साहब।
सदर महफिल और मैं क्या कहूँ, मैंने शुरू में कहा ना कि मैंने जिनके सामने शायरी की सांसें ली हैं, बाकी अहमद पूरी साहब मोहतरम साहब की इजाज़त से और आप सब ने की इजाज़त से मैं सबसे पहले तो सऊदी अरब की सरजमीन पर रहने वाले तमाम दोस्तों को इस खुशी की दिन की मुबारकबाद पेश करता हूँ, इस दुआ के साथ, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह सऊदी अरब और पूरे गल्फ और अरबिस्तान की सरजमीन पर ये बहारें हमेशा क़यामत तक ये बहारें जारी रहें और अल्लाह की मखलूक इससे मुस्तफ़ीद होती रहे। ये बहुत बड़ी बात है। लाखों बल्कि करोड़ों लोग यहाँ से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह पाक इस सरजमीन को आबाद रखे और खुश रखे। ये चंद मिसरे हैं कि जुल्मते शब को निगलना उसे आता होगा। जुल्मते शब को निगलना उसे आता होगा, बन के सूरज के तरह जिसको निकलना होगा। बन के सूरज की तरह जिसको निकलना होगा, और इतना आसान नहीं परवाज सफर में होना, इतना आसान नहीं परवाज सफर हो जाना, तूने दिल से उसे परवान चढ़ाया होगा। और हर समत खुशी लाई है इनाम की सूरत। सऊदी अरब की नजर ये हर समत खुशी लाई है इनाम की सूरत। सहरा में बहार आई है गुलफाम की सूरत। उतरे हैं फलक से जो यहाँ चांद सितारे, उतरे हैं फलक से जो यहाँ चांद सितारे, हर एक का मुकद्दर बना इकराम की सूरत। ये चंद के और ये गजल के चंद शेर हैं। मैं पेश करता हूँ कि ज़मीं है क्या मैं फलक तुझ पर वार सकता हूँ। ज़मीं है क्या मैं फलक तुझ पर वार सकता हूँ, सितारे कुछ नहीं सूरज उतार सकता हूँ। ज़मीं है क्या मैं फलक तुझ पर वार सकता हूँ, तारे कुछ नहीं सूरज उतार सकता हूँ, तेरे बगैर मैं जीवन गुजार सकता हूँ, मुझे पता है कि खुद को संवार सकता हूँ। क्या कहने भाई, क्या कहने, बहुत उम्दा, बहुत तेरे बगैर, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, तेरे बगैर मैं जीवन गुजार सकता हूँ, पता है कि खुद को संवार सकता हूँ, और जो मुझको कत्ल करे तुम पर भी न हो इल्जाम, जो मुझको कत्ल करे तुम पर भी न हो इल्जाम, मैं अपने दिल में वो खंजर उतार सकता हूँ। क्या बात, आप मेरे लिए एजाज है, मेरे लिए अवार्ड है बहुत। और शबे फिराक लहू होगा मेरे दिल का मगर, शबे फिराक लहू होगा मेरे दिल का मगर, सबा के चेहरे को खून से निखार सकता हूँ। क्या बात, सबा के चेहरे को खून से निखार सकता हूँ। और ये हौसला तो विरासत है मेरे पुरखों की, ये हौसला तो विरासत है मेरे पुरखों की, वफा परस्ती में जान अपनी वार सकता हूँ। वफा परस्ती में जान अपनी हार सकता हूँ, और ख्याल खाम है तेरा कि मुझको ढा देगा, ख्याल खाम है तेरा कि मुझको ढा देगा, मैं इस भंवर में भी कश्ती उतार सकता हूँ। क्या कहने, मैं इस भंवर में भी कश्ती उतार सकता हूँ। और मेरे वतन के अदू बात की याद रखना मेरी,
मैं मर भी सकता हूँ और तुझको मार सकता हूँ। मार भी सकता हूँ। क्या कहने, क्या कहने। मेरे वतन के अदू बात याद रखना मेरी, मैं मर भी सकता हूँ और तुझको मार सकता हूँ। क्या कहने फैयाज जो साहब। तूने खोद की रखी है मेरे वास्ते में, तूने खोद की रखी है मेरे वास्ते में, उसी लहद में तुम्ही को उतार सकता हूँ। उतार सकता हूँ। वाह 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 वाह, उसी लहद में तुम्ही को लहद में बहुत तुम्ही अच्छे, को वाह उतार सकता हूँ। सुभान सितम तो अल्लाह, सुभान लाख अल्लाह। करे मुझ पर सितम तो लाख करे मुझ पर वतन मेरे, मुझे यकीन है मैं तुझको संवार सकता हूँ। और मेरे वतन तेरी धरती के रेगजारों को लहू से सींच के अपने निखार सकता हूँ। वाह वाह क्या वाह, मेरे वतन तेरी धरती के रेगजारों को लहू से सींच के अपने निखार सकता हूँ। और वाह अदू वाह, से मतलब मक्ता खास तौर पर हाजिर खिदमत है कि जी जी अदू से बेशक। इसलिए मिलता हूँ हंस के मैं फैयाज। वाह अदू से इसलिए मिलता हूँ हंस के मैं फैयाज फैयाज। कि इस अदा से अदावत को मार सकता हूँ। क्या क्या कहने, बात, क्या वाह कहने। इस अदा अदा से से अदावत को मार अदावत को को मार सकता मार हूँ। सकता हूँ। बेशक बेशक। इस अदा से अदावत को मार सकता हूँ। जमी है क्या मैं फलक तुझ पर वार सकता हूँ। वाह सितारे कुछ नहीं सूरज उतार सकता वाह, हूँ। बहुत तेरे खूब, बगैर मैं जीवन गुजार सकता हूँ। मुझे पता है कि खुद को संवार सकता हूँ। बहुत बहुत क्या शुक्रिया। कहने, वाह वाह। क्या सऊदी कहने, अरब क्या कहने। जिंदाबाद। बड़े बहुत दिनों बाद अच्छे। जनाब सुना, सारे बहुत खुशी हुई। गल्फ के ममालिक वाह, कुवैत जिंदाबाद। इन मुल्कों को मैं हमेशा सलाम करता हूँ, उनकी जमीन से मोहब्बत करता हूँ, क्योंकि मुझ जैसे कई फकीर यहाँ अमीर हुए हैं। यकीनन यकीनन। और ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह पाक बहुत आबाद रखे और अल्लाह पाक आपकी इस तंजीम को आबाद रखे कि आप आमीन, याद आमीन, रखते हैं इस दिन को। पिछले खुश साल रहे। की तरह फिर आपने याद रखा। खासकर बहुत अच्छे। डॉक्टर अफरोज आलम साहब काबिल मुबारकबाद है, काबिल तहसीन है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। ये थे फैयाज मलिक साहब, बहुत सीनियर शायर। आपने उन्हें सबने महसूस फरमाया। मैं क्या कहूँ आपके बारे में, मेरे पास अल्फाज नहीं है, लेकिन मुझे निजामत का हक भी अदा करना है। मुझे मेराज फैजाबादी के अशार याद आ रहे थे कि जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक के सफर भी देना, गुफ्तगू तूने सिखाई है वाह कि वाह मैं वाह। गूंगा था अब मैं बोलूंगा तो लफ्जों में तो बातों में असर भी देना। फैयाज वर्दिक साहब इसी सिलसिले के शायर हैं, खूबसूरत अशार के मालिक हैं, बेहतरीन इंसान है, खुलूसमंद इंसान है। मैं बड़ा ममनून हूँ आपको सुनने के बाद। बड़ी रेडियाई आवाज है जी माशाल्लाह। आइए अब मेरी फहरिस्त बड़ी में मरबूत और खूबसूरत निजामत है आपकी, बहुत बहुत मुबारक। इनायत जर्रन हो, ये सब आप लोगों से ही सीखा है मैंने कुछ अलहदा जनाब से मेहनत नहीं की है। मुझे बुला ले, वो सईद बस रोशन बस साहब माशाल्लाह। मेरी फेहरिस्त में ये अब नामुमकिन है। अब कुल जमा तीन ही अदीब शायर और बड़े लोग रह गए हैं, जिनमें सईद रोशन साहब, बाकी अहमद पुरी साहब और जनाब सदर खुर्शीद अहमद अली साहब। अब मैं भारत से सईद रोशन साहब को दावत कलाम दूंगा इन अशार के साथ कि माना वफा नहीं है फरेब वफा तो है, माना वफा नहीं है फरेब वफा तो है, कुछ भी सही तसल्लिए दर्द आशना तो है। सईद रोशन साहब भारत से। जनाब अली आइए जनाब। अदाब अर्ज़ है और सदर मोहतरम की इजाजत से आवाज आ रही है? बताओ। जी हाँ, बिल्कुल आ रही है। बहुत अच्छा मुशायरा चल रहा है, बहुत अच्छा कलाम सुना गया आप पर। और मैं तमाम लोगों का ममनून हूँ कि आपने मुझे मुशायरे में मदऊ किया। अफरोज आलम साहब का भी, जिन्होंने मुझे मेहमान के तौर पे दावत दी। बाकी साहब को एक अरसे बाद मुलाकात की, मैं मुलाकात हो रही है, बल्कि मैं देख रहा हूँ मैं बड़ी भी आप बड़ी दोस्तों की वजह से तामीर। हाजिर हो गया हूँ।
चांदी ज्यादा ही उतर आई है। पुराने दोस्त इकट्ठे हुए। जी जी। बहरहाल एक गजल के दो चार शेर के हिम्मत न कभी हारो तुम राह के कांटों से। वाह वाह। हिम्मत वाह न कभी हारो वाह। तुम राह के कांटों से, पानी भी तो निकला है इन सख्त चट्टानों से। पानी भी तो निकला है क्या बात है इन भाई, सख्त क्या बात चट्टानों है, से। क्या बात है, बहुत खूब भाई, हमने बहुत तो खूब। गुजारी है ताउम्र खसारे में। हमने तो गुजारी है जारी है ताउम्र खसारे उम्र में। खसारे में। पीतल ही मिला हमको सोने की दुकानों से। पीतल ही मिला हमको सोने की दुकानों से। बहुत खूब। कितनी ही बुलंदी पर परवाज करो लेकिन, कितनी ही बुलंदी पर प्रवास करो लेकिन आना है जमी पर ही तुमको तो उड़ानों से। आना है जमी क्या पर बात ही है भाई, क्या तुमको बात तो उड़ानों से। और तुमने न कही हमसे, हमने न सुनी तुमसे। तुमने न कही वाह हमसे, वाह वाह। हमने न सुनी तुमसे। वो बात सुनी हमने लोगों की जुबानों से। अरे वो वाह, बात क्या सुनी बात है, हमने क्या बात है, क्या लोगों बात है की जनाब, जुबानों क्या से। बात है, क्या बात है, क्या बात है। क्या ये कहने गजल सही साहब। ये गजल शायद पहले सुनी है आपने। ये नहीं पता मुझे कि ये दुनिया एक फसाना है, न तुम समझे न हम समझे। वाह। ये दुनिया एक फसाना है, न आना तुम है न तुम समझे समझे न न हम हम समझे। समझे। कहाँ किसका ठिकाना है, न तुम तुम समझे समझे न न हम हम समझे, न तुम समझे न हम समझे। क्या बात है। तो शेर देखे कि हजारों फलसफी समझे न दानिश्वर समझ पाए। हजारों वाह। फलसफी समझे न दानिश्वर समझ पाए। ये जीवन एक मुअम्मा है न तुम समझे न हम हम समझे। समझे। वाह। क्या कहने जीवन सही एक साहब। मुअम्मा है क्या कहने भाई, वो तुम समझे न हम समझे। और शेर और देखिए कि सिकंदर है यहाँ कोई, बहादुर शाह जफर कोई। सिकंदर है यहाँ कोई, बहादुर शाह बहादुर जफर शाह कोई। जफर कोई। नसीबों में लिखा क्या है न तुम समझे न हम न समझे। तुम समझे न हम समझे। नसीबों में बहुत खूब लिखा भाई, क्या है बहुत खूब, बहुत। न तुम समझे न हम समझे। हम समझे। हंसी वाह। मंजर में खोया था लगी थी आंख जब मेरी। हंसी मंजर में खोया था लगी थी आंख जब मेरी। तगय्युर में जमाना है न तुम समझे न हम समझे। न तुम समझे न हम और गजल समझे। का क्या मक्ता है बात। कि समझते हैं शराबों को जो रोशन चश्मे सहरा। वाह। क्या बात समझते है, हैं क्या बात शराबों है। को जो रोशन चश्मे सहरा। नजर वाह। का एक धोखा है न तुम समझे न हम समझे। क्या बात है, क्या नजर का बात है, एक क्या धोखा बात। है न न तुम तुम समझे समझे न न हम समझे। हम समझे। शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बहुत वाह खूब, वाह, ये बहुत थे खूब। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। सईद रोशन साहब वाह। जो हमारे सदर थे। अब हमारी फहरिस्त में बाकी अहमद पूरी साहब और जनाब सदर। जनाब आले। बाकी साहब के लिए मैं मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं बड़ा ही तिफल मकतब हूँ। मैं जी आप नहीं, कोई जी। भी कुछ नहीं कह सकते। आरफी साहब मैं अगर यही काफी है। इजाजत दे तो मैं पढ़ बिल्कुल दूं, क्योंकि सही कह ये रहे नहीं हैं। ये सद, ये रिवायत के बरखिलाफ हो जाएगा और क्योंकि मैं सदारत नहीं उन्हीं की चाहता। होनी थी, यकीन करें, लेकिन ये कुछ नहीं नहीं गलत नहीं फहमी नहीं हो नहीं गई। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। अब देखिए, अब तो ये आप रह गए, मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं इरफान सिद्दीकी का एक शेर पढ़ूंगा, एक मतलब पढ़ूंगा, और आप सब अपने महबूब शायर को नहीं नहीं, सुनिएगा मुझे कि ये शहादत मुझे पढ़ने की हासिल होनी चाहिए। कोई मैं सब उठो दोस्तों मेरे उठो लिए ये काबिल मंजरे। एहतराम है, सब बड़े शायर हैं, अच्छे शायर हैं।
जी जी जी। उठो ये मंजरे शब्ताब देखने के लिए, उठो ये मंजरे शब्ताब देखने के लिए, कि नींद शर्त नहीं ख्वाब देखने के लिए। बाकी अहमद पुरी साहब। क्या बात है, क्या बात है। चंद शेर। जी। यूं सितमगर नहीं होते जाना, वाह। सितमगर नहीं होते जाना, नहीं होते जाना, जाना फूल पत्थर नहीं होते जाना। होते जाना, क्या बात है। यूं सितमगर नहीं होते जाना, फूल फूल पत्थर पत्थर नहीं होते जाना। एक जैसे है खुशी के लम्हे, दुख बराबर नहीं होते। क्या बात है। एक जैसे है फिर से खुशी पढ़िए। के लम्हे, दुख बराबर नहीं होते जाना। वाह वाह वाह। क्यों मेरे दिल से कहीं जाते हो, घर हाय से हाय हाय। बेघर नहीं मेरे दिल होते से जाना। क्या बात है। हम तुम्हें क्या बात हम है, तुम्हें क्या बुत बात है। की तरह पूजते हैं, हाय हम हाय, हम तुम्हें तुम्हें बुत की बुत की तरह तरह पूछते पूजते हैं। हैं, फिर भी काफर नहीं होते जाना। क्या बात है। बार बार आता हो, बार बार जबरदस्त। आता हो, क्या बात है। फिर भी काफर नहीं होते जाना। जाना। क्यों मेरे दिल से कहीं जाते हो, घर से बेघर नहीं होते जाना। वाह 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 क्या वाह। बात, बड़ा घर से क्या बात है। बेघर नहीं होते जाना। घर से बेघर नहीं इस होते कदर जाना। खून न बहाओ दिल का, है इस कदर खून न इस बहाओ कदर दिल का, खून न बहा दिल का, इस कदर खून न बहाओ दिल का, दिल इस कदर समंदर नहीं खून न होते बहाओ दिल का। वाह वाह। वाह वाह समंदर वाह नहीं वाह होते वाह। जाना, वाह। क्या कह दिया। समंदर नहीं होते जाना। यूं फिर से सितमगर आता हूँ नहीं जनाब, होते फिर से आता जाना। हूँ। एक और चंद शेर मुझे बीच बीच में याद आते रहते, मैं लिख के तो पढ़ता नहीं, तो जी जी। वो टोटके ही चलते रहते हैं, कभी 4 कभी 2 कभी 3। कि शाम होती है तो हम घर से निकल जाते हैं, जी जी। काम। और कुछ देर को हम घर से निकल जाते हैं। वाह वाह। शाम और कुछ होती देर है को तो हम घर से निकल जाते घर हैं, से निकल और जाते कुछ हैं। देर और को कुछ देर को हम घर घर से से घर निकल से निकल जाते जाते हैं। हैं। क्या कहना है, क्या कहना है। जहन थक जाता है एक याद को लिखते लिखते, क्या बात है। जहन थक जाता जहन है थक जाता है एक एक याद याद को को बहुत अच्छा लिखते मिसाल, लिखते लिखते, लिखते। बहुत छोड़ के लौह कलम घर से निकल जाते हैं। वाह बहुत वाह अब वाह कोई वाह वाह दश्ते वाह। मोहब्बत में बुलाता भी नहीं, हम्म। अब कोई दश्ते मोहब्बत में बुलाता भी बुलाता नहीं। लाता भी खुद ब नहीं। खुद मेरे कदम घर से निकल जाते हैं, वाह वाह रोज वाह। खुद खाते मेरे हैं खुद कदम खुद कसम, मेरे कदम घर से घर निकल। से खुद ब निकल खुद जाते मेरे हैं। क्या कदम बात। घर से निकल जाते हैं। वाह वाह। रोज खाते हैं कसम घर में रहेंगे बाकी, वाह क्या बात है, रोज खाते क्या हैं बात। कसम घर में रहेंगे बाकी, तोड़ के बाकी। रोज कसम घर से घर से निकल निकल जाते जाते वाह हैं। भाई वाह, वाह 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 वाह। वाह 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 शाम वाह वाह होती वाह। है तो हम घर से निकल बहुत जाते हैं, खूबसूरत मक्ता शायरी है। है, बहुत खूबसूरत। बहुत और कुछ देर को हम हम्म। घर से निकल जाते हैं। बहुत वाह वाह। क्या दो बात है, तीन शेर क्या बात। और। बहुत वाह अच्छा वाह। लगा। बहुत जी जी। खूबसूरत। अता हो। आंख में सईद रोशन साहब साहिब सदर की जी जी नजर कर रहा हूँ कि जी जी। आंख में जी। गिरियाए पे हम न पलट कर आए, अच्छा। क्या आंख बात। में गिरियाए पे हम आपने न गिरिया पलट पे कर हम। आए, फिर ये बरसात का मौसम न पलट कर आए, वाह वाह वाह। वाह। वाह हम वाह। फिर तेरे ये हिज्र के बरसात का मौसम न पलट कर। आंख में गिरियाए पे हम न पलट कर आए,
फिर ये बरसात का मौसम न पलट कर आए। हम तेरे हिज्र से मानूस हैं लेकिन जाना, कल जो गुजरी वो शबे गम न पलट कर आए। वाह वाह, कल क्या बात है, गुजरी क्या वो बात है, शबे गम वाह न पलट कर आए। वाह वाह, और भी दुख को बढ़ाती है खिजा की शामें, क्या बात है, क्या और भी दुख को और भी दुख बढ़ाती को है खिजा की शामें। है जर्द पत्ते थे खिजा जो की शामें। हमदम न पलट कर आए। वाह 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 वाह, जरा वाह क्या पत्ते ख्याल है, थे वाह जो वाह वाह हमदम वाह न वाह, पलट कर आए। वाह 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 वाह, वाह सारा हमने समाज किया है यूं इन्होंने। और भी दुख को बढ़ाती है खिजा की शामें। वाह जर्द पत्ते थे जो हमदम न पलट कर आए। वाह वाह, वाह हमने यूं राह मोहब्बत में उसे छोड़ दिया, हाँ उसने वाह चाहा वाह भी वाह मगर वाह हम न पलट कर आए। वाह, क्या वाह बात हमने यूं राह मोहब्बत में उसे छोड़ दिया, उसने चाहा भी मगर हम न पलट कर आए। पलट कर आए। वाह वाह वाह, यूं तो 100 रंग की गुजरी हैं बहारें बाकी, दिल पे वो वाह वाह प्यार वाह के वाह, मौसम न पलट कर आए। लुट कर आए, वाह 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 क्या आप बात है, पे गिरी क्या है बात मैं हम न पलट कर आए। वाह बहुत क्या शुक्रिया। बात, वाह क्या वाह, कहे, बहुत उम्दा। बहुत बहुत खूब, वाह बहुत वाह उम्दा, बहुत खूब। वाह, बहुत वाह उम्दा। वाह वाह, तबीयत खुश हो गई जनाब, बहुत वाह उम्दा। वाह। रात के 9:45 बज चुके हैं सऊदी अरब के वक्त के मुताबिक, और हमारी फहरिस्त में अब जनाब सदर से पहले चंद बातें कहूँगा। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने मुकदमे शेर व शायरी मुसद्दस हाली के हमरा शाया करके शायरी की दुनिया में जो इनकलाब की रूह फूंक दी थी, उसके बाद अमीर खुसरो के दौर से अब तक गजल ने बतदरीज तरक्की की है, अपने आप को सजाया है, संवारा है, निखारा है, जमालियाती, विजदानी, तारीखी, माहौलियाती, तासुराती और नफ्सियाती नज़रियात को अपने अंदर समोया है। खुर्शीद अली साहब बहरीन से ताल्लुक़ रखते हैं और आपके नाम के साथ अली गए, तो इस सिलसिले में कहूँगा कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ की खिदमत उर्दू के लिए गैर मामूली अहमियत की हामिल है। अलीगढ़ की तहरीक अदबी और रिवायती बंदिशों से आज़ादी और गुलू खलासी की मुहिम से जो फिक्री और नज़रियाती तगय्युर रोनुमा हुआ, उसका तासुर नज़्म की दुनिया तक महदूद व मजदूद नहीं बल्कि गुलिस्तान गज़ल में भी नुमाया हुआ, जिसकी एक झलक आज हम अपने सदर की ज़बानी उनके अशार के हवाले से महसूस फरमाएंगे, बड़े ही अदब एहतराम के साथ कि आमद पे तेरी इतरो चरागो सुबह न हो, इतना भी बूदो बाज को सादा नहीं किया। खुर्शीद अली वाह साहब। वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आरफी साहब। जनाब यकीनन यकीनन आपकी निज़ामत बहुत ही मेयारी रहा, लेकिन तशनगी इस तरह से रह गई कि कुछ फ़ख्र शुहराए कराम को हम ठीक से सुन नहीं पाए, क्योंकि वक्त का तकाजा है। जी हमारे यहाँ तो 10 बजा है, लेकिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान में काफ़ी ताख़ीर हो चुकी है। हम सबसे पहले हम गल्फ उर्दू काउंसिल के ममनून हैं, जो इस तरह की नशिस्तें ऑर्गेनाइज करती रहती हैं, और ख़ास तौर से बल्कि से सऊदी अरबिया के जो कौमी दिन है, आज के मौके पर ये मुनक्कद हुई शाम, और जो भी सऊदी अरबिया में मुकीम हैं, आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। ये बड़ी बात है कि दयार गैर में अफरोज़ साहब, डॉक्टर अफरोज़ साहब और उनकी टीम उर्दू के फ़रोग़ के लिए हमेशा कोशा रहे हैं, और ये सिलसिला यकीनन उन्होंने सीखा है। बाकी अहमद पूरी साहब जैसे लोगों से जब वो कुवैत में थे तो उनसे मेरा भी राब्ता रहा, और मुझे याद आ रहा है कि एक खलीजी नंबर बाकी साहब ने निकाला था, तो शायद मुझे भी शामिल किया था उसमें। तो जी मुझे जी बड़ी जी, खुशी हुई, खूब के शायर। काफ़ी दिनों बाद आपसे रूबरू हो रहा हूँ। इस बहाने से इस तरह की महफिलें सजाते हैं अफरोज साहब, इस बहाने से पुराने और नए दोस्तों से मुलाकातें हो जाती हैं, ये बड़ी बात है।
اور جیسا کہ میں نے کہا کہ تشنگی باقی رہ گئی، اور خاص طور سے نظر صاحب کو اور سننا تھا، اور نور صاحبہ شاید سنانا چاہ رہی تھی لیکن وقت کا تقاضا تھا، جو ناظم صاحب نے شاید موقع انہیں نہیں دیا۔ انشاءاللہ پھر اس طرح کی کوئی محفل ہوگی۔ اور سلیم قابض صاحب کو بھی اور سننا تھا، اور ایک اور تشنگی رہی کہ فیاض صاحب سے ہمیں ایک چند اشعار ترنم سے سننا تھا، جو انشاءاللہ پھر کبھی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ۔ چلیے اب شاید آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے یہ سن رکھا ہوگا کہ ایک مطلع اور ایک شعر سے شروع کرتا ہوں اپنی بات، کہ اپنے وطن سے دور عرب کے جہان میں، اپنے وطن سے دور عرب کے جہان میں، وطن سے دور عرب کے جہان میں الفت کے گیت گائیں گے اردو زبان میں، واہ 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 واہ، الفت کے گیت گائیں گے اردو زبان میں، پھر سے عطا ہو جناب۔ اور ہم وہ نہیں اپنے وطن سے دور عرب کے جہان میں الفت کے گیت گائیں گے اردو زبان میں، اور ہم وہ نہیں جو اوروں کی تہذیب اوڑھ لیں، ہم وہ نہیں جو اوروں کی تہذیب اوڑھ لیں، تہذیب گونجتی ہے ہماری اذان میں، تہذیب گونجتی ہے ہماری اذان میں۔ واہ 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 واہ، تہذیب گونجتی ہے ہماری اذان میں۔ چند متفرق اشعار سنیں، پھر غزل کے چند اشعار، کہ جتنا ممکن ہو غم چھپا اپنا، معذرت کے ساتھ باقی صاحب عمر کا تقاضا ہے، آپ کو اشعار یاد رہتے ہیں لیکن میں بھول جاتا ہوں، اس لیے میں لکھ کے لاتا ہوں۔ جتنا ممکن ہو غم چھپا اپنا، زخم دل سب کو نہ دکھا اپنا، اور شعر سنیں کہ جس سے ڈرتے رہے برابر ہم، جس سے ڈرتے رہے برابر ہم، غور سے دیکھا سایہ تھا اپنا، غور سے دیکھا سایہ تھا اپنا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور امیر مینائی کا ایک شعر ہے کہ زیست کا اعتبار کیا ہے امیر آدمی بلبلا ہے پانی کا، اسی تسلسل میں ایک شعر کہ ساز ہستی کا اعتبار کہاں، ساز ہستی کا اعتبار کہاں، کیا خبر ٹوٹ جائے تار کہاں، اور موت آ جائے گی، موت آ جائے گی تو مر لیں گے، موت آتی ہے بار بار کہاں۔ واہ، موت آتی ہے بار بار، کیا بات۔ اس شعر کو پڑھتے ہوئے ذرا سا گلا میرا روند رہا ہے، کیونکہ ایک مخلص دوست ابھی چند دن قبل ہمیں چھوڑ کر اجمل سراج صاحب خالق حقیقی سے اچانک جا ملے۔ ان کی مغفرت کی آپ سب سے گزارش ہے کہ دعا کریں۔ کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے۔ دو شعر اور کہ درد جو آپ کا نہیں ہوتا، پیار کا حق ادا نہیں ہوتا، اور یہ زمانہ برا بناتا ہے ورنہ انسان برا نہیں ہوتا، یہ زمانہ برا بناتا ہے ورنہ انسان برا نہیں ہوتا۔ اور چند اشعار نوجوان طبقے کو ہم نے خاص طور سے ان کے لیے کہا تھا کہ جنون سر میں ارادوں میں ولولہ رکھنا، جنون سر میں ارادوں میں ولولہ رکھنا، باقی صاحب ہزار تیز ہو طوفان حوصلہ رکھنا، اور ملے گی منزل مقصود ایک دن بے شک، ہمیشہ راست قدم اپنا قافلہ رکھنا۔ اور شعر سنیں سلیم صاحب، جو سکھ میں ساتھ دے دکھ میں سمیٹ لے دامن، جو سکھ میں ساتھ لے، جو سکھ میں ساتھ دے دکھ میں سمیٹ لے دامن، تم ایسے شخص سے تھوڑا سا فاصلہ رکھنا، ایسے شخص سے تھوڑا سا فاصلہ رکھنا۔ اور ایک اور شعر کہ وہ جن کے دل میں بھرا زہر ہو زباں پہ شہد، وہ جن کے دل میں بھرا زہر ہو زباں پہ شہد، تم ان کے واسطے ہاتھوں میں آئینہ رکھنا، واسطے ہاتھوں میں آئینہ رکھنا۔ کیا بات ہے محترم، کیا بات ہے۔ بہت بہت شکریہ، اور خاص طور سے کامران صاحب کا جو ہماری خدمت میں بیٹھے رہے اب تک، اور
میرے خیال میں شاید ریکارڈنگ وغیرہ کے خدمات انجام دے رہے ہیں. میں سب آپ حضرات کا بہت بہت ممنون ہوں. حالانکہ اکثر میں نے دیکھا کہ دولہا غائب رہتا ہے اور وہ افروز صاحب یقیناً میرے خیال میں اس سے پہلے والے مشاعرے میں شامل تھے شاید اس لیے, اور یا نہیں اس میں بھی شامل نہیں اور نہیں وہاں سے بھی شامل نہیں تھے. بہرحال وہ میں 5:30 بجے سے بیٹھا ہوں, 5:30 بجے مشاعرہ ہوا تھا. بہت بہت شکریہ کامران صاحب. دوستوں کو اکٹھا اور کرتے ہیں, یہ بڑی بات. انہی الفاظ سے آپ سارے خوش فخر شعراء کرام کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اور مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہوئی کہ ہم نے باقی صاحب سے بہت دنوں بعد ملاقات ہوئی, روبرو ہوئے. فی امان اللہ. اور اللہ آپ سب کو خوش رکھے اور انشاءاللہ پھر کبھی اس طرح کی محفل میں ملاقات ہوگی. باقی صاحب آپ سے رابطہ رہے گا. اور باقی صاحب آپ کی کتاب مجھے مل گئی ہے, جہان باقی. افروز عالم صاحب کا شکریہ جناب. اس نے جی وہ وہاں عمان کے ایک مشاعرے میں ندیم ماہر اور یہ ان کے ساتھ میرا جانا ہوا تھا, تو وہاں وہ کتاب مجھے ملی. ابھی پوری طرح پڑھ نہیں پایا ہوں. بہت بہت شکریہ. اور آپ تو یہ چھوڑیں, آپ تو نہ جانے کتنے کتابوں کے خالق ہیں. اور بے شک اور نور صاحبہ آپ سے پھر کبھی سننے کا موقع ملے گا انشاءاللہ, کیونکہ رات کافی دیر ہو چکی ہے. انشاءاللہ پھر ان کو انوائٹ کریں گے. چلیے فی امان اللہ. آپ سب اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. بہت شکریہ. بس 1 منٹ کا ٹائم مجھے اور دے دیجئے. 1 منٹ سے جی عارفی صاحب کا. جی اب جناب صدر کے بعد میری ذمہ داری ختم ہوتی ہے, اور یہاں سے مائک آج کے مشاعرے کے کنوینر منصور قاسمی صاحب کے حوالے ہوتا ہے. آپ کلمات تشکر وغیرہ اور جو بھی بات کی روایت ہے آپ اسے مکمل کریں. بہت شکریہ. میں گلف اردو کونسل کی طرف سے اور بحیثیت کنوینر اب تمام شعراء اور سامعین و سامعات کا شکریہ ادا کرتا ہوں. امید ہے کہ آئندہ بھی جب کبھی اس طرح کا پروگرام ہوگا تو آپ سب شریک ہوں گے. میں خصوصی طور پر باقی احمد پوری صاحب, خورشید علی صاحب, فیاض وردی صاحب, ان سب کا اور دیگر سارے شعراء کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور یقیناً بہت اچھا رہا آج کا مشاعرہ, اور بہت کامیاب رہا, اور بڑے اچھے اشعار آئے. اور میں اس شعر کے ساتھ بات ختم کروں گا کہ تمہارے ساتھ یہ موسم فرشتوں جیسا ہے, تمہارے ساتھ یہ موسم فرشتوں جیسا ہے, تمہارے بعد یہ موسم بہت ستائے گا. بہت شکریہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر. صدر صاحب مجھے اجازت ہو تو میں ایک ویڈیو شیئر کروں گا یہاں پہ. جی بالکل. جی کامران صاحب, دعاؤں کی درخواست ہے, اس کو دیکھ کے بھی دعا کیجیے گا. میں کامران صاحب کا خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے پورا ٹائم دیا, بیٹھے رہے, ماشاءاللہ میں بھول ہی گیا تھا. جی کامران صاحب پورا ہینڈل کیا پورا. اور ہمارے اگلے شاعر آپ سب کے جانے پہچانے, نہ صرف ہمارے شہر کے بلکہ ہمارے ملک کے نمائندہ شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے. ان کی شاعری میں ایک نہایت دھیما پن ہے, ایک خوبصورت حزنیہ لہجہ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی بات کہنے کا بے پناہ سلیقہ موجود ہے. تشریف لا رہے ہیں, بھرپور استقبال کیجیے گا محترم اجمل سراج. بہت شکریہ. اچھا, پیچھے جو ہم لوگ بیٹھے ہیں شعراء کرام, ان کو اس طرح کی آواز نہیں آ رہی جیسے آپ لوگوں کو آ رہی ہے. یہ جو ہے نا, یہ ایک خاص بات ہے. اور بہت اچھا یہ مشاعرہ ہے, اور میرے لیے اس میں بہت خاص بات یہ ہے کہ شاہدہ حسن صاحبہ بھی یہاں موجود ہیں. وہ بہت عرصے کے بعد کسی مشاعرے میں ہیں. صاحب صدر کی اجازت سے پھر
ایک غزل کے چند شعر. کہ کیا کہے گا کبھی ملنے بھی اگر آئے گا وہ. کیا کہے گا کبھی ملنے بھی اگر آئے گا وہ. اب وفاداری کی قسمیں تو نہیں کھائے گا وہ. کیا کہنے. واہ. کیا کہے گا واہ. کبھی ملنے بھی. اپنا کاروبار امریکہ تک پھیلانا چاہتے ہیں؟ ورکی کے ساتھ آپ پاکستان سے ہی اپنی کمپنی آسانی اگر آئے گا وہ. اب وفاداری کی قسمیں تو نہیں کھائے گا وہ. کیا کہنے. ہم سمجھتے تھے کہ ہم اس کو بھلا سکتے ہیں. ہم سمجھتے تھے کہ ہم اس کو بھلا سکتے ہیں اور وہ سمجھتا تھا ہمیں بھول نہیں پائے گا وہ. ہم سمجھتے تھے کہ ہم اس کو بھلا سکتے ہیں وہ سمجھتا تھا ہمیں بھول نہیں پائے گا وہ. نہ سوچا تھا پر اتنا تو نہیں سوچا تھا. کتنا سوچا تھا پر اتنا تو نہیں سوچا تھا. یاد بن جائے گا وہ خواب نظر آئے گا وہ. کتنا سوچا تھا پر اتنا تو نہیں سوچا تھا. یاد بن جائے گا وہ خواب نظر آئے گا وہ. بابا نجمی صاحب آپ مجھے نظر آ رہے ہیں, سمجھے آپ, یہ نہ سمجھیے گا. ہاں 3 آدمی نظر آ رہے ہیں بس. کتنا سوچا تھا پر اتنا, اور اب عقیل عباس جعفری بھی, پر اتنا تو نہیں سوچا تھا. یاد بن جائے گا وہ خواب نظر آئے گا وہ. اچھا یہ والی مونچھ اس طرف ہے کہ سب کے ہوتے ہوئے ایک روز وہ تنہا ہوگا. سب کے ہوتے ہوئے ایک روز وہ تنہا ہوگا, پھر وہ ڈھونڈے گا ہمیں اور نہیں پائے گا وہ. سب کے ہوتے ہوئے ایک روز وہ تنہا ہوگا, پھر وہ ڈھونڈے گا ہمیں اور نہیں پائے گا وہ. اتفاقاً جو کبھی سامنے آیا اجمل, اتفاقاً جو کبھی سامنے آیا اجمل, اب وہ تنہا تو نہ ہوگا جو ٹھہر جائے گا وہ. کیا کہے گا اتفاقاً جو کبھی سامنے آیا اجمل, اب وہ تنہا تو نہ ہوگا جو ٹھہر جائے گا وہ. کیا کہے گا کبھی ملنے بھی اگر آئے گا وہ, اب وفاداری کی قسمیں تو نہیں کھائے گا وہ. ایک دوسری غزل جو طے ہے کہ پڑھنی ہے. جی ارشاد. بڑی عنایت. تازہ. اچھا یہ بھی ہمارے بھائی جان ہیں اقبال لطیف صاحب, اور تازہ غزل کا کہہ رہے ہیں, تو تازہ غزل جو ہے میں سناتا ہوں کہ ہم اپنی عمر رواں سے ادھار لیتے ہیں. ہم اپنی عمر رواں سے تمہارے ساتھ جو لمحے گزار لیتے ہیں. واہ واہ واہ. یہ وہ روٹی ہے جو بعض اوقات آدھی پکا کے رکھی ہوئی ہوتی ہے نا, تو یہ میری غزل بہت پرانی ہے, 10-15 سال کی, کچھ شعر اس میں نئے بھی ہوئے ہیں. ہم اپنی عمر رواں سے ادھار لیتے ہیں. میں نے اقبال لطیف صاحب کو بتا دیا کہ کچھ مطلع اور کچھ شعر پہلے کے ہیں. ہم اپنی عمر رواں سے ادھار لیتے ہیں, تمہارے ساتھ جو لمحے گزار لیتے ہیں. اور بہار ہی سے نہیں ہے بہار کا سودا, بہار ہی سے نہیں ہے بہار کا سودا, کہ ہم خزاں سے بھی لطف بہار لیتے ہیں. کیا کہنے ہیں, کیا کہنے ہیں. بہار ہی سے نہیں ہے بہار کا سودا,
वाह कि हम खिजा से भी लुत्फे बहार लेते हैं, कि हम खिजा से भी लुत्फे बहार लेते हैं, हवा से आग जलाते हैं, आग से पानी। क्या कहना, क्या कहना। सरमत साहबाई साहब, हवा से आग जलाते हैं, आग से पानी, हर एक जबर से हम इख्तियार लेते हैं। क्या कहना। हवा से आग जलाते हैं, आग से पानी, वाह हर एक जबर से हम इख्तियार लेते हैं। तो नींद आए तो उड़ते हैं आसमानों में, जो नींद आए तो उड़ते हैं आसमानों में, और उड़े जो नींद सितारे शुमार लेते हैं। वाह वाह वाह। जो नींद आए तो उड़ते हैं आसमानों में, उड़े जो नींद सितारे शुमार लेते हैं। और एक आध शेर और था जो मैं भूल रहा हूं, और ये दूसरी गजल बहुत छोटी है, दूसरे लोगों ने बहुत लंबी लंबी सुनाई है नज़में और गजलें, लेकिन मैं बहरहाल नहीं सुनाऊंगा। ये आखिरी शेर है, और पता नहीं क्यों मेरा दिल चाह रहा है कि मैं बताऊं कि ये मैंने अपने वालिद के लिए लिखा है जो यहाँ नहीं है। कि ये जानते हुए वो शख्स अब नहीं है यहाँ, ये जानते हुए वो शख्स अब नहीं है यहाँ, बढ़े जो दर्द तो उसको पुकार लेते हैं। वाह वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान साहब। सुनते मेरी आंखों में आंसू आ गए। बहुत मुखलिस दोस्त थे, बहरीन जब भी आते थे मेरी बहुत मुलाकातें थी, कुर्बत थी, मेरी बहुत कुर्बत थी उनसे। बहरीन का दौरा उनका काफी रहा, 4-5 बार हमारे मेहमान रहे वो। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह पाक करवट करवट जन्नत। सलीम साहब और फैयाज साहब, कामरान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नूर साहिबा, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। फी अमानिल्लाह। सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया।